only present as an autosome, so it will be transmitted directly, right, irrespective of the sex of the progeny, right. इसका मतलब अगर हम इसके हिसाब से pedigree distribution देखें, तो if I will see this first pedigree, both the parents are affected, right. अगर दोनों parents affected and all the progenies are going to be affected, तो all the progeny means हम कहेंगे mainly क्या होता है, 4 chances में से 2 are the daughter and 2 are the son, right. So उन chances के अंदर अगर हम देखें 100% transmission हो रहा है means equal number of the male are affected, equal number of the female are affected. So it's basically independent of the specific sex of an individual, right? Got the point, everyone? Okay, good. Right. So अब यहाँ अच्छा, okay. Now tell me, in which of the trait or in which of the traits skipping of the generation is observed? In which of the traits skipping of the generation is observed? Where we will say the generation has been skipped with the trait. कौन से trait में मिलता है हमें? Skipping of generation. Very good. Right, that's a recessive inheritance. Absolutely correct, Rachel. That's में दिखता है, लेकिन अगर वो autosomal है, X-linked है, ये कैसे define करोगे? Voice is not clear. Wait. Voice is breaking and video is lagging. Not clear. Okay, just wait, please. Okay, everyone, is audio video perfectly fine now? Audio video clear? Is it now breaking or lagging? Yes, everyone. Yes? Okay. So let's continue with the topic. Yes, Anya and Raju, just wait for a second. Right, because of the raining, right, थोड़ा fluctuation है, तो अभी 5 मिनट रुको, ठीक हो जाएगा, ठीक है? Right, अभी वीडियो एंड ऑडियो तो परफेक्ट है ना इस टाइम पे? लैगिंग का इशू तो नहीं आ रहा है? That's great then. Okay, guys. No, ma'am, it's perfect. Good. ओके तो अब हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली बेटा डिस्कस किया था, राइट, पेडिग्री एनालिसिस के अंदर, एंड वी से इस पेडिग्री एनालिसिस में अगर ट्रेट का स्किपिंग हो रहा है हमारे पास, तो इट इज गोइंग टू बी द रिसेसिव ट्रेट। ट्रेट अगर उसी में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो कर रहा है तो इट इज गोइंग टू बी एन एक्स लिंक्ड ट्रेट। अगर क्रिस क्रॉस फॉलो नहीं कर रहा है, इट इज गोइंग टू बी दी नॉर्मल ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। लेकिन हम कहते हैं जहां पर स्किपिंग नहीं हो रहा है 100%, 75%, राइट, 50% ट्रांसमिशन इज गोइंग टू बी अकर, देन वी नेम इट एज अ डोमिनेंट ट्रेट। वापस से, right, in the dominant trait, is any particular individual is carrier, right, in the dominant trait inheritance, right, do any individual is going to be a carrier? No, absolutely correct, कोई भी individual carrier नहीं होगा, लेकिन वहीं पर recessive trait में female carrier रह सकती है अगर वो X-linked recessive state में है तो, और male कभी भी carrier नहीं होगा। male के लिए तो state क्या लिखते हैं हम? Hemizygous condition। We simply say that the male is having the hemizygous condition, right? Hemizygous condition male में present है because X is going to carry the trait. Fine. अच्छा, फटाफट एक क्वेश्चन लिखो, राइट, राइट अ क्वेश्चन क्विकली। A family has hypertrichosis trait. A family has hypertrichosis trait. Hypertrichosis trait such that, Agriti, relog in once again, beta. Family is having hypertrichosis trait such that male progeny of the family, male progeny of the family married a female,
male progeny of a family married a female, full stop. How many, what will be the probability, that their daughter is going to be affected? What will be the probability that their daughter is going to be affected? फटाफट आंसर मिले इसका मुझे. Right, very good Ankur, great Abhishek, that's good. No one, absolutely correct, no one, because the trait is hypertrichosis. क्या show कर रहा है? What's the reason why answer is 0%? बिल्कुल Y-linked, it's a Y-linked trait. Yes Ashok, बिल्कुल ठीक है बच्चे. Right, Y-linked trait है हमारे पास, उसके basis पे हमने कहा it is not going to show the transmission to the daughter or any female of the progeny, sorry, any female of the generation. So we will simply say that the 0% trait is going to be there. Good. Okay, write the another question quickly. Done है सबका first question? Everyone completed? Okay guys, now the next question. A deceased man marries a female, having 5 offsprings. A deceased man marry a female having 5 offsprings, where 3 progeny are deceased and 2 are normal. 3 progeny are deceased and 2 are normal. 3 progeny are deceased and 2 are normal. Which type of inheritance is followed in the family? Which type of inheritance is followed in the family? Do the pedigree. सबसे पहले pedigree बनाओ इसका. उसी के साथ साथ उसका पूरा क्रॉस देखो कितने इनहेरिटेंस पॉसिबल है. ठीक है, कौन कौन सा पॉसिबल है और किस किस जनरेशन पे कौन सा फॉल्स हुआ है. 2 ही जनरेशन मैंने आपको दी है, 2 ही सेट के हिसाब से बनाना है, एक ही सेट के हिसाब से बनाना है. राइट, तो उसी एक सेट को लेके उसी के बेसिस पे फटाफट बताओ. Abhishek, think about it again. Right, because it can be possible that apart from that another is also there. सिंपल पेडिग्री बनाओ इसके अंदर. Then I will also open the slide ताकि हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकें. Okay, 50% what स्वतंत्र. बेसिकली इनहेरिटेंस का टाइप बताना है बच्चे मुझे. आपने मुझे सब कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है? वाई लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है. राइट, कौन सा इनहेरिटेंस इसके पास? एक्स लिंक्ड, डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड. ओके फाइन. ओके, नाउ लेट मी डिस्कस विद यू. क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है? क्वेश्चन सेज दैट अफेक्टेड फादर marries normal mother. Mother is normal because mother is not said to be deceased, so we will take mother as normal. Now affected father and normal mother produces 3 offsprings as affected and 2 as normal. That is what we observe in the question. अब इसी के हिसाब से हम बनाते हैं बच्चे. लेट मी प्रूव इट टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव. ठीक है, तो हम पहली कंडीशन लेके चलते हैं दैट इट इज गोइंग टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव इन नेचर. अब अगर ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस देखते हैं तो अफेक्टेड फादर को आई टेक स्मॉल ए क्रॉस विद आई टेक इट एज कैपिटल ए स्मॉल. ठीक है, मदर को कैरियर ले लेते हैं इस कंडीशन में. एक सेकंड, स्मॉल ए. अब हमारे पास कितने आएंगे? तो वी विल से स्मॉल ए. इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल. मींस 2 out of 4
एंड 4 आउट ऑफ 8, अगर मैं 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट लूं, आउट ऑफ 8 आर अफेक्टेड, तो पॉसिबिलिटी है ना, सो पॉसिबिलिटी दैट 3 आउट ऑफ 5 विल बी अफेक्टेड, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास कि 3/5 में से अफेक्ट हो जाएगी, मींस ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट, अंडरस्टूड। अब अगर ऑटोसोमल रेसेसिव है और केस हमारे पास 50% वाला फॉलो हो रहा है बच्चे, तो इट इज गोइंग टू फॉलो दी ऑटोसोमल डोमिनेंट एज वेल, राइट, क्योंकि मैं अगर इसे रिवर्स कर दूंगी तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस को भी फॉलो करेगा, तो दिस ऑल्सो कम अप टू बी करेक्ट, फाइन। Now the third one I'll say it is going to be X-linked recessive. अब अगर X-linked recessive inheritance को follow कर रहा है, तो हम कैसे इसको observe करेंगे? Let us suppose I'll take father as XCY because being deceased and mother as carrier because उसी condition में result जहाँ पर मेरे पास progeny deceased आएंगे। तो अगर अब इस कंडीशन में मैं देखूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चे, इसके अंदर XC दैट इज डॉटर इज डिसीज्ड, तो डिसीज्ड डॉटर मिल गई। नेक्स्ट मुझे मिल गया XXC, राइट, दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्मल। नेक्स्ट मुझे मिल गया यहाँ पर XY, दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्मल, and I'll get XCY, that is going to be the deceased. So means out of, अगर हम देखें इसमें, तो we simply say that out of 4, 2 are deceased, क्योंकि हमें सेक्स तो देखना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है हमें कहाँ नहीं है, right, 2 are deceased, and out of 8, 4 are deceased, means possibility is there that we have 3 out of 5 to be deceased. This also come up to be correct. Understood. Now I'll say the fourth condition over here. It is going to be X-linked dominant. अब अगर X-linked dominant prove करना है बच्चे, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर फादर को तो XCY ले लिया, लेकिन मदर को तो मैं नॉर्मल लूंगी ना, तो दैट इज XX। अब इस कंडीशन में अगर मैं समझूं, तो यहाँ पर फॉलो अप क्या होगा, दैट XXC is going to be deceased, daughter is going to be deceased, इसी के साथ साथ एक डॉटर फिर XXC आएगी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिसीज्ड, एंड सन क्या आएंगे दोनों हमारे पास नॉर्मल, बोथ द सन आर गोइंग टू बी नॉर्मल, तो ये भी करेक्ट हो गया, right? So we say this is also X-linked dominant is also correct, X-linked recessive is also correct, autosomal dominant is also correct, autosomal recessive is also correct. Now how we can take an answer, right? मदर को, हाँ बिल्कुल अब वही करेंगे अंकुर, उसी में वही चीज हम पढ़ेंगे। तो अब ऑटोसोमल देखो, अब मैं आंसर कभी भी ऐसे क्वेश्चन का करती हूँ, मैं तब तक इसका आंसर X-linked नहीं करूंगी जब तक मुझे मेल और फीमेल का डिस्टिंक्शन नहीं दे रखा होगा, बिकॉज वंस आई टेक द मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्शन कि मुझे पता चल जाएगा, तब मैं उसको X-linked ट्रेट मान सकती हूँ। जब मुझे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है उस चीज के लिए, मुझे क्वेश्चन नहीं दे रहा है, तो आई टेक इट ओनली एज एन ऑटोसोमल। तो बेस्ट आंसर टू बी देयर इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। यहाँ रिसेसिव डोमिनेंट कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है, तो ऑटोसोमल है, X-linked है, Y-linked है या माइटोकॉन्ड्रियल है, 4 है। इसमें से मैंने अभी आपको 3 ही पढ़ाए हैं, माइटोकॉन्ड्रियल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो ऑटोसोमल है हमारे पास, X-linked है, या फिर हमारे पास कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रियल है या Y-linked। तो Y-linked तो नहीं है, दैट्स ऑफशोर हो गया, राइट। X-linked हमारे पास हो सकता है, राइट, और उसी के साथ ऑटोसोमल भी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे बेस्ट सेलेक्ट करना हो तो व्हाट आई विल सेलेक्ट एज ऑटोसोमल। याद रहेगा क्वेश्चन सबको, अंडरस्टूड। अब इसके अंदर कंडीशन, बिकॉज क्या पॉसिबल है बेटा, अगर X-linked रेसेसिव के अंदर मैं मदर को कैरियर ना लेती तो मेरे पास डिसीज 2 ही आते है ना, तो मेरे पास डिसीज, सॉरी 2 कैरियर, एक ही आता, डिसीज आता ही नहीं, तो उस केस में पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाती। और X-linked डोमिनेंट कंडीशन अगर हम लेके चल रहे हैं, तो डोमिनेंट हमारे पास 2 हो सकती है कि उसमें 2 डिसीज बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी मुझे आंसर सेलेक्ट करना पड़े, लेट अस सपोज आई विल सेलेक्ट द आंसर, मुझे ऑप्शंस दे रखे हैं और ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, X-linked रेसेसिव। याद रहेगा पॉइंट सबको, एवरीवन अंडरस्टूड, क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस एवरीवन, डन, पूरा क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है, इस तरीके से आपको निकालना है, इस तरीके से केसेस बनाना, राइट। बस आंसर थोड़ा देख लेना अच्छे से कि आंसर किस हिसाब से करना है क्वेश्चन का, राइट। कंप्लीटेड, ओके, नाउ लेट मी, okay, that's good,
वेरी गुड गाइस, राइट। सो दिस इज वेयर वी कंप्लीट विद द क्वेश्चन। पेडिग्री के एक टाइप का क्वेश्चन ये करना है, एक टाइप के अच्छा सिंबल्स में कुशाग्र आजमी की आई ट्यूटर पे थोड़े से अलग दे रखे हैं सिंबल्स, राइट। नो नीड टू वरी बच्चा, राइट। आपको वही सिंबल्स याद करने हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स में डिफरेंट आइडियोलॉजी के हिसाब से सिंबल चेंज होते हैं। You need not to go to any of the symbol apart from NCERT। तभी मैंने भी स्लाइड में सिर्फ वही इमेज उठाई है पैकेज की जो एनसीईआरटी की इमेज एक्चुअली गिवन, राइट। दैट्स वाई वही इमेज लेके आपको सिंबल्स करने हैं। क्वेश्चन अगर कोई नया सिंबल मेंशन कर देता है तब उसे कंसिडर करके आगे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोई भी अपनी तरफ से सिंबल इन्वेंट नहीं करो। समझ आ गया पॉइंट सबको? एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। सो दिस इज वेयर वी कंप्लीटेड विद द पेडिग्री एनालिसिस। लास्ट टाइम हार्डी-विंगबर्ग कर लिया था हमने। We started with the Hardy-Wingberg, we complete with the derivation को बताओ इसके अंदर। Hardy-Wingberg equilibrium, yes done। हाँ, P plus Q equals to 1। Okay everyone, तो हमने Hardy-Wingberg फॉर्मूला हो गया था, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हमें करनी है। Hardy-Wingberg इक्विलिब्रियम में हमने क्या समझाया था? वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन जेनेटिक्स, कि ट्रेट का ट्रांसमिशन एक पॉपुलेशन में कैसे होता है। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना देखा कि फैमिली लाइन में किस तरीके से हो रहा है, राइट। सर ने भी करा दिया, बहुत ही बढ़िया, सर ने भी पूरा डेरिवेशन वगैरह सब कुछ करा दिया होगा। तो एवरीवन आप कंप्लीटेड है ना वहां से, राइट। तो हमने कहा वहां पर भी हमने डिफाइन किया कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील मैंने ली थी डोमिनेंट की P और रिसेसिव की Q, तो वी कैन से सिंपली P plus Q equals to 1। जहाँ हमने डिराइव करके उसको फॉलो अप भी कर लिया कि हमारे पास P square plus 2PQ plus Q square equals to 1, that come up to be an answer, राइट। अब उसी को ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ फटाफट से उसके दो क्वेश्चन, राइट, और फिर हम स्टार्ट करते हैं, right, next topic of the chapter, that is human genetics, and फिर उसके numerics करेंगे। Okay guys, so this is where we talk about Hardy-Wingberg equilibrium। Okay everyone, so यहाँ पर हमने basically discuss किया था that for Hardy-Wingberg equilibrium there is no requirement, right, of any migration, any genetic drift, any population, we can say small population size, rather a random mating is to be required। और फटाफट से क्वेश्चन देखो इसके अंदर। क्वेश्चन करते टाइम आई थिंक सर ने भी क्वेश्चन कराए होंगे प्रैक्टिस इसके, राइट। क्वेश्चन करते टाइम बच्चा इसमें सबसे मेन चीज एक ध्यान रखनी है, राइट, कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ये देख लेना है कि क्वेश्चन दे क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी एक अलील की दे रहा है या फिर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर, राइट, आपको जीनोटाइप की दे रहा है। तो ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान से देखना है, राइट। तो अब एक फटाफट से क्वेश्चन लिखो, यही वाला क्वेश्चन, राइट, और उसी के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। दैट अ सर्वे ऑफ 500 मेट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन X was done, राइट, सर्वे किया गया, which revealed that 20 are suffering from cystic fibrosis। What's the frequency of the normal allele in the population? Population में normal allele की frequency क्या होगी? जल्दी से कर दो solve question, right? तो question में है आपका, right? Let me tell you the question value, that the total population size is 500, 20 are suffering from cystic fibrosis। अब आपको ये याद रखना है that cystic fibrosis is autosomal recessive disorder, ठीक है, राइट। उसके बेसिस पे आपको मुझे बताना है व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉर्मल अलील इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में नॉर्मल अलील की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, राइट। ओके, 0.04 कैसे अमन? ओके, गुड, वेरी गुड राजू। एल्स? अब देखो ऐसे क्वेश्चन करते टाइम, राइट, डायरेक्टली बच्चे एक गलती क्या करते हैं, लेट मी टेल यू द मेजर मिस्टेक, राइट। सबसे पहले आपको एक तो डिसऑर्डर का याद रखना है कि कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। डिसऑर्डर सिस्टिक फाइब्रोसिस बिकॉज इट्स एन ऑटोसोमल रेसिसिव डिसऑर्डर। तो आपको पता चल गया रेसिसिव, इसका मतलब रेसिसिव स्टेट के जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चा, ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इंडिविजुअल के अंदर जीनोटाइप होगा, ये जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है। मींस ये सिस्टिक फाइब्रोसिस सफर करने वाले इंडिविजुअल जिनके पास स्मॉल ए प्रेजेंट होगा, और स्मॉल ए इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर होता है, राइट। तो क्यू स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 20/500, 500 में से 20 अफेक्टेड है ना, तो आई गेट द वैल्यू एज क्यू इक्वल्स टू 0.2 आ गया। अब मैं फॉर्मूला जानती हूँ P plus Q equals to 1, I get the answer P equals to 0.8। समझ आ गया पॉइंट सबको, राइट, क्लियर है? 0.04 क्यों आंसर नहीं है, 0.04 तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, राइट। तो यही चीज तो याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल अलील ध्यान रखना है, नॉर्मल अलील की क्या फ्रीक्वेंसी है। तो
उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसी क्वेश्चन में बताओ, राइट, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, राइट, लिखो इसमें, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन will show the heterozygous genotype. How many individuals in the population will show the heterozygous genotype? Heterozygous genotype and dominant phenotype. दो चीजें बतानी है, A part इसका heterozygous genotype, B part इसका dominant phenotype. Heterozygous genotype, B part dominant phenotype. मैंने अब क्या पूछा अशोक, क्वेश्चन ध्यान से, कुशाग्र ध्यान से। आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। आप 0.32 जो वैल्यू निकाल रहे हो, बिल्कुल ठीक बेटा, अब सही आ रहे हो आंसर 160 पे। पॉइंट देखो, हमारे पास 2pq की वैल्यू आएगी ना, 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, दैट इज 0.32 आ गया मेरे पास। अब 0.32 ऑफ 500 निकाल के आंसर देना, दैट इज 160। डन। अच्छा, टोटल डोमिनेंट फिनोटाइप, टोटल डोमिनेंट फिनोटाइप, श्योर अभिषेक? ओके, टोटल डोमिनेंट अगर मुझे निकालना है तो क्या मेरा पूरा डॉफा ज्यादा कैसे हो गया अभिषेक, राइट, टोटल डोमिनेंट फिनोटाइप निकालना है तो इज इट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq? ये सिर्फ पी स्क्वायर के इक्वल तो नहीं होगा ना। अब मैंने आपसे पूछा डोमिनेंट फिनोटाइप, तो डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया मेरे पास, ए भी हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बी पी स्क्वायर प्लस 2pq। अब याद रहेगी वैल्यू, राइट, पी स्क्वायर प्लस 2pq। अब पी स्क्वायर प्लस 2pq अगर निकालना है तो पी स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर हो गया, राइट, प्लस 2pq में प्लस कर दूं उसके अंदर, दैट इज 160 प्लस कर दूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो यहाँ तक समझ आया सबको, पी स्क्वायर प्लस 2pq निकाल के आंसर आ जाएगा ना सबका, एवरीवन अंडरस्टूड? अब हो जाएंगे हार्डी विंगबर्ग के क्वेश्चन, डन, राइट। अच्छा, फटाफट से एक और निकाल दो क्वेश्चन, राइट, एक क्वेश्चन जल्दी से। The percentage of positive individual, the percentage of RH positive individual is 400 among 1000, 400 नहीं, is 1600 among 2000, is 1600 among 2000, 1600 among 2000. What will be the frequency? What will be the total number? What will be the total number? Total number of marriages? Total number of marriages with possibility of एक डिसऑर्डर आपने पढ़ा था जो आरएच की वजह से होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस, वही, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस, ठीक है, राइट। फटाफट से आंसर निकालो। अच्छा, पहली लाइन बताना, मैंने इसमें क्या बोली थी, RH पॉजिटिव पॉपुलेशन बोली है ना, yes everyone, yeah, RH positive individual, right, हाँ ठीक है, RH positive individual, fine, possibility of RH positive individual is this among this। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, possibility of RH positive allele in population is
0.4 RH माइनस ये फर्स्ट स्टेटमेंट चेंज कर लेना एवरीवन. पॉसिबिलिटी ऑफ RH माइनस अलील इन पॉपुलेशन इज 0.4. राइट, उसे कैलकुलेशन उससे भी बताऊंगी अभी कैसे करोगे. पहले ये वाले से निकालो आंसर जरा. Possibility of RH minus allele in population is 0.4. Right. What will be the possibility that marriages will result in offspring with erythroblastosis fetalis? थोड़ा सा सोचो क्या करोगे, कैसे होगा. आंसर बहुत सिंपल है इसका. राइट, जस्ट ओनली यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कैसे हमें करना है. राइट, टोटल पॉपुलेशन 2000 ले लो. टोटल पॉपुलेशन 2000 ले लो. Right. So take the total population as 2000. Okay. One answer I get 800. Okay. Any other option? Any other answer? 40%. Okay. Ria 400. Okay. 960. Okay, Swatantra. 400, 800, 960. This is what I get an answer till now. Anyone with some new option? 480. Okay. Right. Okay, guys. Now what the question said? Now question ने क्या कहा है हमें? Question ने कहा RH minus allele की frequency आपको given है, and that frequency is given as 0.4. ठीक है. Can I say Q is given as 0.4? Right? Q हमें 0.4 दे रखा है. अब मुझे Q दे रखा है तो I'll apply the simple formula P plus Q equals to 1, where I get P equals to 0.6. P की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.6. राइट, अब मुझे वो निकालनी है मैरिजेस जिनसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस होने के चांस है. नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन वेयर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस कैन बी पॉसिबल. यस गाइस, टेल मी द कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल. किस कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस होने के चांसेस है? RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर. राइट, RH positive child कब आएगा? Right, when RH positive child will be possible when father is going to be RH positive and mother is going to be RH negative. Then only this condition is true. Means the condition applicable is, right, so we simply say condition applicable is RH negative mother marrying RH positive father. Right, और कोई condition possible नहीं है. अब अगर RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव फादर से मैरिज करती है तो एक के पास स्मॉल d जीन है, एक के पास कैपिटल D जीन है. राइट, वो बेसिकली क्लब हो रहे हैं. तो आई कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एज PQ. आई कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एज PQ, नॉट 2PQ. ये चीज सबसे मेन याद रखनी है. फ्रीक्वेंसी इज PQ. अगर फ्रीक्वेंसी PQ है तो आई सिंपली से 0.4 into 0.6. राइट, मेरे पास आ जाएगी वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 0.24 of 2000. I simply calculate that. Right, और 0.24 of 2000 निकालूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? That is 480. तो who has given the answer as 480? आप incorrect. 2PQ क्यों नहीं लिया? फटाफट से मुझे समझा दो जरा. 2PQ क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पर? Right, जिसको क्लियर हुआ है. Why we haven't taken the option as 2PQ? I'll simply state an answer as with the respect to the value PQ. क्योंकि बच्चे जो हमने कंडीशन ली है उसमें हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस लेना है तो मदर को तो डॉट शॉट RH नेगेटिव लेना ही लेना है. आप चेंज नहीं कर सकते. फादर को क्या लेना पड़ेगा? RH पॉजिटिव, तभी तो चाइल्ड भी RH पॉजिटिव आएगा. अगर फादर के पास कैपिटल D नहीं होगा, मदर के पास स्मॉल d होगा, तभी तो चाइल्ड कैपिटल D स्मॉल d आएगा RH पॉजिटिव वाला. तो आपके पास जो एक केस बनता है, एक केस कौन सा बनेगा? जहाँ RH पॉजिटिव फ्यूज करेंगे तो मीन्स P स्क्वायर हो गया. जहाँ RH नेगेटिव फ्यूज करेंगे वो Q स्क्वायर हो गया. जहाँ पर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव फ्यूज करेंगे वो 2PQ हो गया. अब 2PQ में से पॉसिबिलिटी क्या है कि मदर RH पॉजिटिव हो, फादर RH नेगेटिव हो, मदर RH नेगेटिव हो, फादर RH पॉजिटिव हो. आपके लिए कंडीशन सिर्फ कौन सी एप्लीकेबल है कि मदर RH नेगेटिव हो और फादर RH पॉजिटिव. इज इट फाइन?
टोटल आरएच माइनस पॉपुलेशन में हाफ ही फीमेल होंगे, व्हाई वी हैवंट टेकन ऑल ऑफ देम एज अ फीमेल, राइट सानिया, डिपेंड नॉट ओनली ऑन द फीमेल ना, लेकिन हमारे पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करता है ना आरएच फैक्टर, तो ऑन दैट बेसिस डी अलील पे काम कर रहा है, तो आप फादर का भी तो काउंटर पार्ट लेके चलोगे, राइट फादर से भी तो एक अलील आएगा, मदर से भी एक अलील आएगा, तो आप पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में से फीमेल को ले भी लो, राइट लेकिन आप हार्डी विंगबर्ग तो इसी हिसाब से सेट करोगे ना, यहाँ तो स्पेसिफिकली आपको हार्डी विंगबर्ग सेट करना है, राइट एवरीवन डन, क्वेश्चन क्लियर है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया पे आ गया, या फिर आप मान लो आगे जो मैं डिसऑर्डर पढ़ाने वाली हूँ उस पे आ गया, तो उस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, पीक्यू का मतलब क्या है, पीक्यू का मतलब जहां आपका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, जिसके लिए आप फादर और मदर, क्योंकि इसके लिए फैमिली इनहेरिटेंस भी चल सकते हैं, राइट जिसके लिए आप फादर और मदर का क्या ट्रेट लेके चलोगे उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन डिसाइड होगा, ठीक है, understood everyone, so this is where we completed with the population genetics, right, and the pedigree analysis. Let's talk about the human genetics, right, तो अब स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स बेसिकली, तो मेंडेलियन कह रही सॉरी आपका साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक्स, तो पहले मैं ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी फिर मैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो आज हम ह्यूमन जेनेटिक्स कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे, राइट, सो लेट मी शेयर द स्लाइड and let's start with the question, part of that whole question. Okay guys, now let's begin with the human genetic disorder. Human genetics जैसे अभी हमने पढ़ा कि we can deal with the human genetics while studying the inheritance pattern, जहाँ हम इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है या कैसे हमारे पास इनहेरिटेंस पैटर्न फ्लो कर रहा है, सेम उसी तरीके से हम ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। Now what are the two categories बचा? फर्स्ट कैटेगरी वो डिसऑर्डर की है जो मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, इसका मतलब वो डिसऑर्डर्स जो किसी म्यूटेशन, किसी ऑल्टरेशन इन अ सिंगल जीन की वजह से हुए, राइट, वॉइस इज नॉट, अनुष्का रीलॉग इन वंस अगेन, एक सेकंड, ओके गाइस, सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने कहा कि इट इज डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, जब एक ही जीन में कोई ऑल्टरेशन या म्यूटेशन होती है और उस जीन में ऑल्टरेशन और म्यूटेशन की वजह से देयर इज गोइंग टू बी द ट्रेट कि वो ट्रेट या तो आएगा और ऑफस्प्रिंग में या फिर वो ट्रेट नहीं आएगा ऑफस्प्रिंग में, समझ आया पॉइंट, राइट, सो वेदर द ट्रेट इज बीइंग अपीयरिंग इन द जनरेशन और द ट्रेट इज नॉट अपीयरिंग इन द जनरेशन मींस फॉलोइंग द कंप्लीट मेंडेलियन बेसिस जो आपने पेडिग्री में पढ़ा है, राइट, लेकिन वो डिसऑर्डर जो किसी ऐसी ऑल्टरेशन की वजह से अराइज होते हैं जो ऑल्टरेशन या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे होगी या फिर वो ऑल्टरेशन जीनोम की वैल्यू में होगी, तो अगर जीनोम के नंबर कम ज्यादा हो गए, जीनोम की वैल्यू चेंज हो गई, उसके बेसिस पे जो ऑल्टरेशन हो रही है, राइट, वो आपने क्या कहलाए जाएंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो टेल मी गाइस, इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फॉलोइंग मेंडेलियन इनहेरिटेंस? Is chromosomal disorder following Mendelian inheritance? No, absolutely no. Right, तो chromosomal disorders ना तो Mendelian inheritance follow करेंगे ना pedigree analysis follow करेंगे, right? This simply arises due to the defect in the cell function and metabolism. उसी के metabolism, उसी के functional state में change होने की वजह से arise। तो अब हम पहला हमारे पास टास्क है, वी विल टॉक अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर इन डिटेल, फिर हम एंड में पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फटाफट से एक एग्जांपल बता दो जरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्विकली गाइस, एनी एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एंड आई एक्सपेक्ट नंबर ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम यू, right, yes, exactly Ankur, only in the one gene, CML, very good Jasmine, Down syndrome, good Zoya, and apart from that और कोई एग्जाम्पल, टर्नर सिंड्रोम, क्राइडोचैक सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, वेरी गुड गाइस, राइट, सो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, राइट, उसी के साथ बर्किट लिम्फोमा हमारे पास, बिल्कुल ठीक है एवरीवन, वेरी गुड, राइट, सो जितने मैंने पहले आपको पढ़ाए थे ना कि इनके रीजन क्या होते हैं अपीयरेंस के, अब हम यहाँ पर उनके बस सिम्टम्स पढ़ेंगे, राइट, सो मेनली अब हमें सिम्टम्स वाला काम करना है इनका, right, so number first we started with the Mendelian disorder, so we simply say that the Mendelian disorder determined by alteration or mutation in the single gene, एक ही जीन में alteration या mutation हुआ है, because you are going to talk only about the point mutation आपके syllabus में है, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई Mendelian disorder नहीं है जो gross mutation से नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सिंगल जीन इनहेरिटेंस ही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही याद रखने हैं जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं,
राइट। तो अब हमने कहा दे आर ट्रांसमिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन में, बिल्कुल ट्रांसमिट होंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से, राइट, जो आप एक्चुअली में पढ़ते भी हो पेडिग्री एनालिसिस के हिसाब से। फाइन। उसी के बाद हमने कहा ये ऑटोसोमल भी हो सकते हैं, एक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं, वाई लिंक्ड भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रेसेसिव भी हो सकते हैं। तो जितने ट्रेट मैंने आपको पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताए थे, वही चीजें आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है एज इट इज सेम, राइट, कि कैसे इनहेरिटेंस फॉलो अप होगा। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट, फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का तो एक एग्जांपल ही करना है, डिटेल नहीं पढ़नी है, राइट, लेकिन हाँ ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड के रेसेसिव वाले ज्यादातर अच्छे से आपको पढ़ना है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। Now, autosomal recessive disorder. Just give me a second, please. Okay, guys. Yes, Ankur. Are mutation in more than one gene not counted? No, they can be counted as Mendelian disorder, right? As I said, Ankur, you have to study only with the one gene. That's why you say, because अगर मान लो दो जीन में हो जाता है तो you will take it as a double gene Mendelian disorder उन्हें हम कहते हैं। तो specifically हम उन्हें Mendelian disorder नहीं कहते, we take it as double gene, right? और वो basically क्या होते हैं, हम generally क्या लेके चलते हैं बेटा, अगर आपको एक ध्यान हो, मैंने इसका एक point पढ़ाया था कि जीन का जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है उसके बेसिस पे हम ये कहते हैं, राइट, कि सिंगल जीन विल फॉर्म अ पर्टिकुलर एंजाइम, लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम है जिसमें एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व होते हैं। उस टाइम पे हम ये वाला केस लेके चलते हैं कि मे बी ड्यूअल जीन इनहेरिटेंस पॉसिबल हो, राइट, ड्यूअल जीन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पॉसिबल हो, लेकिन वो आपके एग्जाम्पल सिलेबस में नहीं, ठीक है। वो सिंगल हमेशा मेंडेलियन वर्ड जो सेट होगा ना वो वन जीन के लिए सेट होगा, ठीक है, ऑलवेज फॉर द वन जीन, क्योंकि आप एक एक करके काउंट अप पढ़ते हो, आप सारे एक साथ नहीं पढ़ते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से, राइट। तो अब हमने कहा यहाँ पर सर आर्नोल्ड गेरोड, राइट, ये जो बेसिकली हमारे पास है, तो सर आर्नोल्ड गेरोड ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस को, राइट, इन्होंने बेसिकली सर आर्नोल्ड गेरोड, नाम ध्यान रखना, ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, इन्हें हम फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्होंने ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस को डिफाइन किया एल्कैप्टोन्यूरिया, राइट। एल्कैप्टोन्यूरिया को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा। एल्कैप्टोन्यूरिया इज अ ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर, जहां पर एक रेसेसिव जीनोटाइप, ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल रेसेसिव ट्रेट शो करेगा उसके अंदर वो एंजाइम नहीं सिंथेसाइज होगा, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि अगर डोमिनेंट है रेसेसिव है उसके हिसाब से बताओगे। तो अगर ये रेसेसिव है तो अब इस स्टेट में ये वो जीनोटाइप शो नहीं करेगा, सॉरी फिनोटाइप नहीं शो करेगा, बेसिकली जिसकी वजह से वो एंजाइम की क्या शो करेगा, एब्सेंस शो करेगा। तो इट बेसिकली शो द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, राइट, ऑक्सीडेज एंजाइम की एब्सेंस शो करेगा, राइट। तो अब ये एल्कैप्टोन्यूरिया समझाने के लिए आई विल टेल यू अबाउट वन मेटाबॉलिज्म, ये एक मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से बनाते चले जाएंगे साथ साथ इसको, राइट। और इस पूरी कैटेगरी में मैं 3 डिसऑर्डर आपको एक साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये जितने भी आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं they are called as metabolic disorders. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को मैं नाम देती हूँ metabolic disorders। क्यों मैं इन्हें metabolic disorder कहती हूँ बेटा, बिकॉज ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो किसी बायोकेमिकल की एब्सेंस की वजह से हो रहे हैं एंड दे आर मेटाबॉलिकली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द अदर वी कैन से मेटाबॉलिक पाथवे इन द ऑर्गेनिज्म, राइट। बाकी के जो मेटाबॉलिक पाथवे ऑर्गेनिज्म है उनके साथ भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड जरूर है, राइट। तो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हमारी बॉडी के अंदर एक अमीनो एसिड है, लेट्स सपोज फिनाइल एलानिन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिनाइल एलानिन व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट इन द बॉडी, right, is converted into phenylalanine hydroxylase as a major content and forms a tyrosine,
ये पाथवे में अभी जो पढ़ा रही हूँ ना एरो करके, वो नॉर्मल वाला पढ़ा रही हूँ मैं कि फिनाइल एलानीन फर्स्ट गेट कन्वर्टेड बाय फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज टू फॉर्म टायरोसिन. Fine, right? Wait, uncle. Right, where tyrosine is being the one which get further converted into 3,4-dihydroxyphenylalanine, which is going to be responsible to form the melanin. And formation of melanin will provide pigmentation to the organism को pigmentation provide कर. Now, some amount of the tyrosine has converted into 3,4-dihydroxyphenylalanine, while some amount remain. That some amount of the tyrosine will convert it into homogentasic acid. And this homogentasic acid, with the help of the oxidase enzyme, will convert into melyl acetoacetic enzyme, which then further converted into the fumaryl acetic acid, acetoacetic acid, right? And then converted into the fumaric acid and acetoacetic acid में convert हो जाता है. ये एक मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है जहाँ पर ये दोनों फ्यूमरिक एसिड और आपका यहाँ पर एसिटोएसिटिक एसिड दे आर गोइंग टू बी लिबरेट आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाता है. अब ये जो हमने पूरा एनालिसिस देखा, पूरा मेटाबॉलिज्म देखा, इसमें अगर मैं कहूँ तो ये मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्योंकि फिनाइल एलानीन बॉडी में आया, उसको आपने चेंज किया टायरोसिन में, कुछ अमाउंट आपने टायरोसिन से मेलानिन बना दिया, कुछ अमाउंट ऑफ टायरोसिन को आपने ब्रेक डाउन करके बॉडी से बाहर भेज दिया. अब इस पूरे पाथवे के अंदर मेन जो एंजाइम काम कर रहे थे, जिनकी वजह से रिएक्शन चल रही है, वो पहला एंजाइम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, दूसरा एंजाइम है टायरोसिनेज, तीसरा एंजाइम है ऑक्सीडेज. ठीक है. अब मैंने ये कहा कि लेट अस सपोज किसी इंडिविजुअल के अंदर फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट. In some of the individual, phenylalanine hydroxylase enzyme remain absent. अगर फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इंडिविजुअल में एब्सेंट है तो इसका मतलब अब वो फिनाइल एलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो ये रिएक्शन रुक गई ना बच्चा. अब ये रिएक्शन रुक गई तो फिनाइल एलानीन का कंटेंट बॉडी में बढ़ने लग गया. दिस इंक्रीज्ड फिनाइल एलानीन कंटेंट गेट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड. ये कन्वर्ट हो गया फिनाइल पायरुविक एसिड. And phenyl pyruvic acid do not metabolize further, rather it start getting accumulated in the brain, in the muscle cells, in the bones, in between the bones. It start accumulating over there and create a disorder which is called as a phenylketonuria. Right, पहला disorder अगर हो गया, जिस disorder को आपने नाम दे दिया phenylketonuria. Right, अब मान लो अगर मेरे पास let's suppose ये enzyme है, phenylalanine hydroxylase है, but tyrosinase absent हो चुका है. Let us suppose tyrosinase is absent. अगर tyrosinase नहीं है तो टायरोसिन का मेजर फ्रैक्शन तो वही बचा रहेगा ना. और टायरोसिन का मेजर फ्रैक्शन आगे आपका ना तो 3,4-डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलएलानीन में चेंज हो पाएगा, ना ही वो आगे जाके मिलेनिन में चेंज हो पाएगा. और अगर मिलेनिन में चेंज नहीं हो पाया, इसका मतलब अब पिगमेंटेशन क्या हो जाएगी, मेरे पास डार्क नहीं रहेगी, राइट, जिसकी वजह से बेसिकली पिगमेंटेशन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा. फाइन. अब हमने कहा इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं जिसमें टायरोसिनेज एब्सेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एल्बिनिज्म. राइट, इसका नाम क्या देते हैं, एल्बिनिज्म. राइट, वी डिफाइन दैट एज द एल्बिनिज्म. फाइन. राइट, अब मैंने कहा जो टायरोसिन है जितना उसका रिमेनिंग कंटेंट बच जाता है रिएक्शन के बाद, इट गेट कन्वर्टेड इनटू होमोजेनेटिक एसिड एंड होमोजेनेटिक acid का fermentation करा के it will get changes into the acetoacetic acid with the help of the enzyme oxidase. Right, this oxidase enzyme will work and change it into the further acetic acid, and then it will further changes into fumaric acid and acetoacetic acid and finally liberating the CO. Right, हमारे पास प्रोसेस में पूरा लिबरेट हो जाएगा. तो अब अगर मैंने कहा let us suppose oxidase enzyme ही absent है, right, if oxidase enzyme will remain absent, then there is no process of the protein synthesis and leading to L-captonuria. Got it? Everyone clear with this? Right, can I name them as metabolic disorder, yes or no? Right. Okay. Now I'll explain the C part again. मैंने इतना कहा बच्चे कि अगर ऑक्सीडेज एब्सेंट हो गया
तो ऑक्सीडेज के एब्सेंस की वजह से जो होमोजेनेटिक एसिड है वो एस्ट्रोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, रादर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट होने की वजह से इट इज गोइंग टू बी द वन व्हिच विल कॉज द डिसऑर्डर कॉल्ड एज अल्कान्यूरिया। ठीक है, तो वी नेम देम एज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, पॉलिक डिसऑर्डर, बायोजेनेटिक डिसऑर्डर, बायोकेमिकल डिसऑर्डर। नो राइट सानिया, बेसिकली पॉइंट इज राइट जो व्हाइट पैचेस स्किन पे अपीयर होते हैं, राइट दे आर द साइन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एल्बिनिज्म। बिगिनिंग राइट, दैट्स नॉट बेसिकली एल्बिनिज्म इज सेम टू दैट, लेकिन उनके रीजन अलग अलग हैं। राइट, कभी कभी व्हाइट पैचेस स्किन के ऊपर बेसिकली बिकॉज ऑफ द सम रिएक्शंस, बिकॉज ऑफ सम अदर डिसऑर्डर्स, सेकेंडरी इफेक्ट की वजह से भी आते हैं। राइट, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। राइट, कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट एवरीवन अंडरस्टूड? राइट, now let us talk about from this only, like इसी से ही कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। राइट, क्या हमारे पास किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे, well captonuria arises because of the absence of the which enzyme? Very good. Right, then we can say phenylalanine hydroxylase basically आपका वो है जिसने इसको गाइड किया है, right, so as to go for this function, ताकि इस particular function की तरफ जा सके। right, तो ये थोड़ी सी चीजें अच्छे से याद रखनी है, छोटी छोटी मिस्टेक्स अच्छे से याद रखनी है कि भले हमने पहले अल्काप्टोन्यूरिया को डिस्कस किया है, लेकिन पूरे मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले वर्क करने वाला एंजाइम कौन सा है? राइट, फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। Now, the next one. Read the points. Wait, Ankur. Yes, guys, read the first 2 points फटाफट से। Are the 2 points clear to everyone? पूरा बायोजेनेटिक समझ आया उसका? Yes, very good, Saloni. बच्चा, और अगर ये पॉइंट याद हो तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। Exactly. That's exactly Rana. Okay, guys. Now, what the question, what the point say basically? हमने कहा it will follow the Mendelian inheritance how? अगर हमारे पास कैपिटल P होमोजाइगस में है, या कैपिटल P स्मॉल p मींस P जीन अगर मेरे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, तो हमने कहा it produces the functional enzyme, and this functional enzyme is being defined as phenylalanine hydroxylase. अब ये जो हमारे पास फंक्शनल एंजाइम है फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, इट लीड्स टू द वन कि ये फंक्शनल एंजाइम अगर प्रोड्यूस हुआ तो इसकी वजह से आगे टायरोसिन वाला प्रोसेस चल गया, तो फिनाइल पायरुविक एसिड की तो एक्यूमुलेशन नहीं हुई ना, और अगर फिनाइल पायरुविक एसिड की एक्यूमुलेशन नहीं हुई इसका मतलब हमारे पास आगे कोई डिसऑर्डर भी अराइज नहीं होगा। नाउ ऐसे अगर स्मॉल पी इंडिविजुअल है तो उसने स्टेट का प्रोड्यूस कर दिया नो एंजाइम स्टेट, उसे तो कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं किया, जिसकी वजह से फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा ही नहीं। अगर फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा नहीं, इसका मतलब फिनाइल पायरुविक एसिड बिल्कुल बनेगा, राइट, और उसी की वजह से हमने कह दिया यहाँ पर एक्यूमुलेशन उसका हो जाएगा एंड रिजल्ट्स इन द डिसऑर्डर। This is how we define that the disorder appear. Everyone understood? जबकि small p वाले that is transaminase enzyme, and this transaminase enzyme do what? ये फिनाइलएलानाइन को फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट कराते हैं। तो जो हम रिएक्शन कह रहे हैं ना कि फिनाइलएलानाइन कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुवेट, वो इसी वजह से, क्योंकि ट्रांसएमिनेज एंजाइम का कंटेंट क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। ऑन दैट बेसिस वी विल डिफाइन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, इसी बेसिस पे हमने पूरा प्रोसेस डिफाइन किया।
अब बस एक चीज इसमें याद रखना, हर डिसऑर्डर के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए, कि जब भी एक इंडिविजुअल के अंदर फिनाइल एलानिन का जो ट्रेट है वो हेट्रोजाइगस स्टेट के थ्रू आ रहा है, तो हेट्रोजाइगस स्टेट वाले को आप कैरियर कहते हो, नो डाउट, राइट। यस, वीडियो बचा खुशाक, मैंने तभी बंद किया, शायद वॉइस क्लियर हो जाए। 2 मिनट रुको खुशाक, मैं दोबारा एक बार नेटवर्क चेंज करती हूँ, राइट। अच्छा, अब अगर मैंने कहा एक इंडिविजुअल अगर रिगार्डेड है मेरे पास बेटा, राइट, कि हैविंग एन ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, कि उसके पास ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, तो ठीक है, उसके पास डिसऑर्डर है। लेकिन अगर वही इंडिविजुअल हमारे पास हेट्रोजाइगस स्टेट में है, तो हेट्रोजाइगस स्टेट में आप उसे डिफाइन करते हो एज अ कैरियर, राइट। और कैरियर वाला कैरी करता है ट्रेट, लेकिन कभी कभी, राइट, उसमें क्या दिखता है हमारे पास, हाई कंटेंट में तो डिसऑर्डर नहीं दिखता, लेकिन लो अमाउंट ऑफ energy, less amount of production of less amount of energy as compared to the normal person, right। ऐसे वो energy means क्या हो गया हमारे पास, कि normal person से कम, right, उसके पास वो एंजाइम कभी कभी प्रोडक्शन में मिल जाता है, ये एक चीज थोड़ी ध्यान रखना, राइट। वंस अगेन एक सेकंड रुको जरा, मैं नेटवर्क एक बार चेंज। हाँ जी, अब ठीक है, अब तो वॉइस लैग नहीं कर रही है, फाइन, वीडियो भी प्रॉपर आ चुका है, वॉइस भी लैग नहीं हो रही होगी आई थिंक अब तो, ओके। ना अब मैं कैरियर वाला पॉइंट बोल रही थी बेटा, जब कोई इंडिविजुअल कैरियर होता है, वो भी सिर्फ फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का मैं भी केस डिस्कस करूंगी, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए बेसिकली, तो हम वहाँ कहते हैं कि वो उसके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होता है, उसके पास, हाँ स्लाइड नहीं है बेटा, राइट, वीडियो आ चुकी है सान्या, राइट, री लॉग इन वंस अगेन बच्चे, राइट। उसके लिए हमने क्या कहा बच्चे यहाँ पर, राइट, कि वी विल सिंपली से कि वहां हम कहते हैं इंडिविजुअल कैरियर है ट्रेट का, इट विल कैरी अप द ट्रेट, ट्रेट को कैरी कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिविजुअल इज नॉट लाइक दैट, उसी टाइम पे हम ये कहेंगे इंडिविजुअल इज नॉट लाइक दैट, सिमिलर टू द नॉर्मल, कुछ अमाउंट में एंजाइम उसमें मिसिंग हो जाता है, कुछ अमाउंट में एंजाइम की डेफिशिएंसी मिल जाती है, तो जो एफिशिएंसी से प्योरली नॉर्मल होमोजाइगस वाला काम कर रहा है, उतनी एफिशिएंसी से हेट्रोजाइगस वाला काम नहीं करता, याद रहेगा ये पॉइंट सबको, एवरीवन अंडरस्टूड। होमोजाइगस वाला जितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, हेट्रोजाइगस वाला शायद उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। क्लियर है बेटा ये पॉइंट अच्छे से, डन, राइट। तो ये चीज एक छोटी सी अच्छे से ध्यान रखना है, हेट्रोजाइगस वाला पॉइंट, राइट। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इस पे कर लेते हैं, राइट, डिसऑर्डर्स पे, फिर मैं उसके बाद आपको डिसऑर्डर का पूरा इनहेरिटेंस पैटर्न डिस्कस करके, राइट, डिफाइन करके, राइट। फाइन एवरीवन, ऑडियो वीडियो सबको ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, perfect, okay, now let's talk about this over here। अब क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ, सब क्वेश्चन नोट करेंगे, राइट, और जल्दी से मुझे रिप्लाई देंगे इसका, ओके गाइस। albinic man marries a woman, an albinic man marries a woman with albinic father and normal mother, fine। albinic man marries a woman who had albinic father and normal mother, albinic father and normal mother, full stop। what will be the possibility to have a part, albinic daughter and B part non-albinic son, albinic daughter and B part non-albinic son,
quickly guys. Okay, I got one answer Rana has given. Okay, I'm giving you the allowing the participants to unmute themselves. Okay guys, A 1 by 2, B 1 by 2, Rana say A 50%, B 0%, 50. अच्छा जीनोटाइप पेरेंट का बता दो सबसे पहले. Okay, Swatandra, 50 and 0. Very good, Zoya. Very good. That's good. 100% Rajul. Okay, guys. Now, what the question say? Albinic. Albinic पता है ना अभी हमें autosomal recessive होता है. तो albinic father. This is being the albino father. And capital A, small a is the normal mother. Why I take like that? As having small a father and capital A mother. ठीक है, राइट. ये हमारे पास पहला केस हो गया. अब मैंने कहा जो प्रोजेनी आएगी, प्रोजेनी इज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए. Right, so we says 2 by 4 are albinic. ठीक है, राइट. 2 by 4 हमारे पास albinic हो गया. अब क्वेश्चन ने पहले पार्ट पे पूछा albino डॉटर. तो albino होने के चांस 1 by 2, डॉटर होने के चांस 1 by 2, 1 by 4. It's not X-linked ना, ये चीज तो याद रखनी थी. It is independent of the sex. Right. Second, right. Now the non-albinic son. Can the same result? Fine. ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? Everyone understood with the question? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, राइट. क्लियर. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. PTC non-taster. क्वेश्चन लिखो राजुल, फिर समझाती हूँ. Carries another non-taster. Woman. अब it is a non-taster. Men. Marries another taster woman. That's that. Yes, Abhishek. One of their progeny here as PTC taster. What will be the
probability for the same. Okay, guys. Now let me tell you, PTC testing is an autosomal dominant disorder. PTC testing is an autosomal dominant disorder. इसके हिसाब से क्वेश्चन करना है. Everyone get the question? एक सेकंड आ रहा एक सेकंड. अब आ गया सबके पास. A PTC non-tester man marries another non-tester woman such that, right, such a basically वो such that, right, one of their progeny appear as PTC tester. What will be the probability to get the same? To get the same means PTC non-tester, right, tester. Go for it, guys, quickly. Okay, so I'm getting one response as half. Think about it. Simple है question बहुत ही बेटा. Yes, PTC testing is an autosomal dominant. Okay, so I'm getting the answer 1/2 as number of people are saying. इसी में एक ऑप्शन और ऐड करो. Progeny with PTC, progeny as PTC tester woman. Progeny as PTC tester woman. Yes, कुशाल. थोड़ा सा तभी वही मैंने कहा ना, सोचना है क्वेश्चन. आंसर आ जाएगा. उसी के नीचे लिखो progeny as PTC tester woman. Okay. Now question read किया बच्चे. मैंने अभी एक लाइन आपको बोली थी. It's an autosomal dominant disorder. ठीक है. उसी लाइन के हिसाब से इस पे रीड करो क्वेश्चन में जरा कि वो कैसे जाएगा आपका आंसर. Now see, let me read out the question for you. Exactly. Only 2 people who think about it and tell me the answer. PTC non-tester man marries another non-tester woman. ठीक है. Such that one of their progeny appear as PTC tester. Right. What will be the probability for the same? 0%. अगर बच्चा दोनों नॉन टेस्टर है तो दोनों रेसेसिव है ना. आपने कैसे उसको हेट्रोजाइगस ले लिया बताओ मुझे जरा. हेट्रोजाइगस में तो वो ट्रेट शो कर देंगे, वो डिसीज्ड हो जाएंगे. राइट. दोनों ही होमोजाइगस रेसिव हैं. तो स्मॉल पी क्रॉस विद स्मॉल पी सारी प्रोजेनी स्मॉल पी आएंगी. राइट. तो ऐसी प्रोजेनी के आने के चांसेस जेनेटिकली 0 है. बाय म्यूटेशन मे बी बिकम पीटीसी टेस्टर. क्वेश्चन समझ आया? खुला दिमाग थोड़ा. ये ऑटोसोमल रेसेसिव का नहीं है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का है. राइट. थोड़ा सोचो एंड देन टेल मी. अभी भी कोई डाउट इसके अंदर? मैंने तभी ये क्वेश्चन फटाफट कराया.
इसी टाइम पे, ताकि ये चीज अभी क्लियर हो जाए। नहीं समझ आया? ओके नाना, लेट मी से इट अगेन इन द चैट। देखो, यही क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है। आई से पीटीसी टेस्टिंग, और पीटीसी टेस्टिंग बताती हूँ क्या होता है। कई लोगों को पेट्रोल सूंघना बड़ा पसंद होता है ना, पेट्रोल की स्मेल बहुत पसंद होती है, कैरोसिन की स्मेल बहुत पसंद होती है, दैट इज पीटीसी टेस्टिंग। ठीक है, पेट्रोल की, कैरोसिन की, ऑयल की, राइट, इनकी स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है, पेंट की, राइट, जितने भी आपके वोलेटाइल कंपोनेंट्स है ना उसके अंदर, राइट, वो बहुत इजीली वो लोग क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, राइट, उन्हें हम पीटीसी टेस्टर्स कहते हैं, राइट। तो अब मैंने कहा यहाँ पर पीटीसी टेस्टिंग इज autosomal dominant trait, means capital P and capital P small p are PTC testers, but small p is PTC non-tester. Is it fine now? Right, तभी तो मैंने कहा था थोड़ा पेडिग्री की यहाँ पर वैल्यू लगाना, तभी चीजें क्लियर होंगी। Everyone got the point? Right. एग्जैक्टली सान्या, राइट, एग्जैक्टली राइट। तो अब मैंने कहा यहाँ पर अगर पीटीसी, क्वेश्चन ने कहा पीटीसी नॉन टेस्टर, तो स्मॉल पी को क्रॉस किससे कर दिया मैंने, स्मॉल पी से। टेल मी एनी हाउ कैन कैपिटल पी इज पॉसिबल? नो, राइट। तो इट विल रिजल्ट इन small p as all progenies are is a non-tester, so answer will be 0%. समझ आ गया क्वेश्चन? एवरीवन अंडरस्टूड? किसी को अब कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अच्छा, अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देती हूँ, राइट, उसमें मुझे समझाना, ठीक है, कि क्या आंसर आएगा आपका। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? यस गाइस, एवरीवन कंप्लीटेड विद दिस? ओके, राइट, नाउ द अनदर क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको अनम्यूट करने की भी एबिलिटी दे रखी है, तो जिसको जो चीज ना समझ आए अनम्यूट करके उसी टाइम मुझसे पूछ लेना, राइट। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, देखो इसमें, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम alkaptonuria and is a PTC tester. Person is suffering from alkaptonuria and is a PTC tester. PTC tester. While on marrying with normal woman, on marrying with normal woman as PTC non-tester, produces their offsprings. What will be the probability? A option. The female child show both the traits. And male child, second option, male child with one of the trait. बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, मेल चाइल्ड विद वन ऑफ द ट्रेट। और यहाँ मैं अगर आपको एक हिंट दे दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अप्लाई मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जितना मेंडल में पढ़ा उसको अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके अभिषेक, let me take the slide.
ताकि हम क्लियर कर सके। I get a correct answer guys for this question. सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा अभिषेक, मुझे चैट में एक बार लिख दो मैंने पेरेंट का क्या दिया है फिर से, ताकि मैं सॉल्व जब करूँ तो गलती ना। पेरेंट मैंने क्या दिया, क्वेश्चन क्या? Try to attempt a question guys. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की जरूरत है। Yes, anyone who can come up with an answer? उनको लग रहा है क्वेश्चन हो पाएगा? अच्छा एक हिंट और देती हूँ, चलो थोड़ा और अगर दिमाग लगा रहे हो सबके सब तो। The question, okay dear, thank you. Right, the question is based on Mendelian dihybrid. Do it as the monohybrid, apply independent assortment and do the question. Male taster and deceased, female non-taster and normal. Okay. तो मेल मैंने दिया है टेस्टर and deceased. And female is given non-taster, normal. Okay. So anyone who can try, you can explain me by unmuting yourself. थोड़ा मुझे समझ आए क्या चल रहा है दिमाग में। ओके सान्या, सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल। Okay, anyone who want to try? कोई भी नहीं? क्या हो गया, आंसर देते टाइम बिल्कुल नहीं बोलना, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। 2 minutes, अच्छा 2 minutes. Okay, giving a 1 minute to you. Go for it. Yes, Zishan, Zoya, Ashok, Ankur, Kushagra. Okay, Ankur. Sonali, Aparna. Okay, now let me start. अच्छा चलो, अब ये हमें दे रखी है कंडीशन। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन ने आपको कहा है जहां आप ये जानते हो that PTC testing is dominant, ऑटोसोमल है दोनों, and alkaptonuria दिया ना शायद मैंने आपको, तो भी दिया alkaptonuria दिया, वो रेसेसिव है, ठीक है, is recessive. So फाइन। अब मैं जीनोटाइप बनाती हूँ। मेल पेरेंट इज टेस्टर, राइट, टेस्टर है तो टेस्टर के लिए कैपिटल ए ले लिया। डिसीज्ड है तो डिसीज के लिए स्मॉल बी ले लिया। फीमेल पेरेंट कैन बी टेकन, नॉन टेस्टर है तो स्मॉल ए। एल्कैप्टोन्यूरिया नहीं है क्योंकि नॉर्मल है तो कैपिटल बी कैपिटल। और इसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या है कि मेल पेरेंट is being a taster, there is a possibility that it can be capital A, and this is obviously small b, right? And female parent
इज गोइंग टू बी पीटीसी टेस्टिंग उनको नहीं है तो स्मॉल ए, लेकिन अल्कैप्टोन्यूरिया भी नहीं है तो कैपिटल बी स्मॉल मीन्स आप क्रॉस जो बनाओगे उसमें क्रॉस 1 अगर मैं लेके चलूं तो क्रॉस 1 गया कैपिटल ए, स्मॉल बी क्रॉस विथ स्मॉल ए, कैपिटल बी। इज इट फाइन एवरीवन? सबसे पहले ये क्लियर है? यही आ रहा है सबके पेरेंट के जीनोटाइप? यस और नो? टेल मी गाइस वन बाय वन। यस, ओके, गुड, राइट। अब अगर मैं इसको लेके चलूं एज अ सिंगल मेंडेलियन क्रॉस, राइट, मेंडेलियन क्रॉस लेती हूँ, मीन्स मैं इसे सेपरेट कर देती हूँ जैसे हम हमेशा करते आए हैं, इसको स्मॉल इस तरह है। तो मेरे पास आ गया 2/4 एज पीटीसी टेस्टर्स एंड 2/4 रिजल्ट। सबसे पहले अपने सामने पूरा मैप बना लिया करो ताकि गलती ना हो, राइट। वाइल अब अगर मैं क्रॉस करा दूं स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी, इस केस में ऑल प्रोजेनी नॉन डिसीज्ड, दोनों प्रोजेनी नॉन डिसीज्ड है, ठीक है ना। ये मेरे पास कंडीशन आ जाएगी। अब अगर मैं क्रॉस 2 बनाती हूँ, क्रॉस 2 में अगर लेके चलती हूँ तो उसके हिसाब से मेरे पास आ गया कैपिटल ए, स्मॉल ए, एक सेकेंड, मेल पेरेंट को ये कैपिटल ए लेंगे ना, कैपिटल ए, यहाँ लेंगे हम यहाँ पर कैपिटल ए, स्मॉल बी क्रॉस विद वी विल टेक स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल, ठीक है। तो अब मैं वापस से लेती हूँ कैपिटल ए आएगा कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल ए, ऑल आर पीटीसी टेस्टर्स, सारे पीटीसी टेस्टर्स आएंगे, राइट। एंड अगर हम क्रॉस बनाते हैं स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/4 एज डिसीज्ड एंड 2/4 एज नॉर्मल। इज इट फाइन एवरीवन? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ तक का सबको? आउटकम क्लियर? यस, राइट। ए मैंने लिया है बच्चे टेस्टर के लिए, बी मैंने लिया है अल्कैप्टोन्यूरिया के लिए। यू कैन रिवर्स इट बैक ऑल्सो, ठीक है, राइट, रिवर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट, ओके। नाउ क्या मैंने आपसे पूछा, क्या मेल पेरेंट क्या लिया है, पूछा क्या मैंने, बताना जरा, उसमें क्वेश्चन मैंने अभी फ्रेम किया, मेल पेरेंट क्या लिया है इसमें? दैट इज जो प्रोजेनी आई है उसका क्या पूछा है मैंने आपसे? प्रोजेनी इज गोइंग टू बी, मेल इज गोइंग टू बी डिसीज्ड बोथ, और एक में वो पूछा ना, एक में दोनों और एक में नहीं, फीमेल विद बोथ एंड ओके, राइट। एंड सेकंड ऑप्शन मेल विद वन, ओके गाइस। तो अब मैंने यहाँ पर पूछा फीमेल प्रोजेनी विद बोथ ट्रेट्स। अब पहले इसका जीनोटाइप बना लो, ठीक है, दोनों ट्रेट आपको चाहिए, तो एक कैपिटल ए, दूसरे वाला भी ट्रेट चाहिए तो स्मॉल बी, और कैपिटल ए स्मॉल बी, दैट्स इट, अंडरस्टूड ना। अब अगर मैं लेके चलूं तो अब अगर मैं इसमें फिर ये आ गया, ये कैपिटल ए, ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें यहाँ पर लेके चलती हूँ तो वेरी सिंपल, कैपिटल ए स्मॉल ए के आने के चांस उसमें कितने हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए केस 1 के अंदर, पहले लेते हैं केस 1, ये मैंने यहाँ पर लिया, ये मेरे पास आएगा, आई विल टेक इट एज दी केस 1 के हिसाब से, केस 1 के हिसाब से लेके चलूँ तो ए मुझे बताना है, ठीक है। अब अगर मुझे ए यहाँ पर डिफाइन करना है तो इसके अंदर आई विल सिंपली से दैट, राइट, कि ये वाली पॉसिबिलिटी केस 1 के हिसाब से तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। केस 1 के हिसाब से कौन सी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी बेटा? दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है और स्मॉल बी भी नहीं आ सकता, तो केस 1 तो इसमें नॉन एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि केस 1 के हिसाब से तो आपको कैपिटल बी स्मॉल बी मिल सकता है और केस 1 के हिसाब से आपको क्या मिल सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए मिल सकता है, तो आपको स्मॉल बी तो मिल ही नहीं सकता प्रोजेनी में, तो केस 1 के हिसाब से तो पॉसिबिलिटी हो गई मेरे पास 0%, मींस केस 1 एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर मैं केस 2 लगाती हूँ तो केस 2 के हिसाब से अगर मैं लेके चलती हूँ तो मुझे वापस कैपिटल ए स्मॉल ए मिल सकता है और स्मॉल बी भी मिल सकता है। कैपिटल ए स्मॉल ए आने के चांस मेरे पास 1/2 इंटू
राइट 1/2 है ना मेरे पास, कैपिटल ए आने के सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए के आने के चांस 1 है, क्योंकि उसमें सारी प्रोजेनी टेस्टर आ रही है तो 1, राइट। उसी के साथ स्मॉल बी आने के चांस कितने हैं, 2/4, और उसी के साथ साथ फीमेल के आने के चांस कितने हैं, 1/2। अंडरस्टूड। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पर, सिंपल 1/4 आ गया, राइट। जब मैंने कंडीशन कौन सी ली, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब मैंने कहा कैपिटल ए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, मीन्स यही कंडीशन पॉसिबल है, तो आंसर इज 1/4। अब अगर हमने इसमें डिफाइन किया दैट नेक्स्ट केस हमारे पास आ गया यहाँ पर, मेल विद 1 ट्रेट हमें चाहिए। तो अब 1 ट्रेट कौन सा हो सकता है बेटा, हो सकता है पीटीसी टेस्टर वाला दो, हो सकता है कैपिटल वाला दो। अगर पीटीसी वाला देते हो तो कैपिटल बी लेके चलो, उसके साथ कैपिटल ए स्मॉल ए भी ले सकते हो और कैपिटल बी भी ले सकते हो, उसके साथ स्मॉल ए ले लो, चलो पीटीसी टेस्टर मत लेके चलो, और अब एल कैपिटल ले लो तो स्मॉल बी भी ले सकते हो, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी बनाओ, कैपिटल ए आपका केस 1 से तो नहीं आ सकता, बता दो इसको, केस 2 से भी नहीं आ सकता, तो ये क्रॉस तो आपका हो गया गलत, राइट। ये क्रॉस तो हमें बेसिकली करने की जरूरत नहीं, राइट। अब हम आते हैं इस पे, तो यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा, कैपिटल बी नहीं आ सकता, तो ये केस भी हो गया हमारे पास फॉल्स, राइट। केस 1 के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है, केस 2 के हिसाब से देख लेते हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, लेकिन वापस कैपिटल बी नहीं आ सकता, तो ये भी मेरे पास इनकरेक्ट हो गया। फिर मैं आ गई स्मॉल ए स्मॉल बी पे, तो ऊपर स्मॉल ए पॉसिबल है, स्मॉल बी पॉसिबल नहीं है, केस 1 तो एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर स्मॉल ए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर स्मॉल बी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर देखा जाए बच्चे, तो क्या आपकी कोई भी कंडीशन ऐसी है जो मेल के लिए ट्रू हो रही है, नो, राइट। तो तीनों कंडीशन फॉल्स, मींस मेल विद 1 ट्रेट पॉसिबल नहीं है, एंड वेरी ऑब्वियस अगर इसे लगाओगे, राइट। फादर अगर डिसीज्ड है, फादर के पास टेस्टर है और मदर नॉन टेस्टर है, इसका मतलब प्रोजेनी इज गोइंग टू बी अ टेस्टर, ठीक है, राइट। और फादर अगर डिसीज्ड है और अगर मदर नॉन डिसीज्ड है, इसका मतलब प्रोजेनी इज गोइंग टू बी, राइट, आपकी प्रोजेनी डिसीज्ड मिलेगी उस केस के अंदर। ये केस समझ आ गया सबको अच्छे से, एवरीवन अंडरस्टूड? यस गाइस, yes, consider both as dihybrid and done it with the Punnett square. Okay, जीशान कर सकते हो बेटा, Punnett square से भी कर सकते हो, राइट। अब समझ आया, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, थोड़ा सा बस दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा इसके अंदर, एक ले लाइन ज्यादा इस पे सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 ट्रेट एक साथ दे रखे हैं, तो पॉसिबिलिटी बनाते जाओ किस केस के साथ क्या पॉसिबल है, उसके बेसिस पे केसेस निकालते चले जाओ, कैसे कैसे आप केसेस निकाल सकते हैं, right, then set karo and then come up with an answer, right। How many of you going to be clear with this question guys, right? सबसे पहले जल्दी से raise your hands जिनको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, राइट। लास्ट स्टेटमेंट मैंने इतना कहा बच्चे, मेल के अंदर ये कंडीशन पॉसिबल दे रखी है आपको, राइट, कि मेल में दोनों चीजें आपको, अगर एक पेरेंट के पास डिसीज्ड है और एक के पास नहीं है, तो एक के पास डोमिनेंट एक के पास रेसिव है, उसके हिसाब से निकालना, राइट, बेस्ड ऑन दैट ओनली। इसीलिए वो चीज आपको एक बार सोचनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो ओनली 4 स्टूडेंट्स, राइट, एंड आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, राइट, एंड द रेस्ट, ओके 6। धीरे धीरे समझ आ रहा है, राइट। क्वेश्चन किया खुद एक बार सॉल्व, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं अब असाइनमेंट आज शाम को देने वाली हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं उसमें डालूंगी और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। If we consider case 2, then the male with 2 disease will be visible, not, yes, exactly so है, male with 2 disease will be visible, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिए, with 1, तो with 1 visible नहीं है ना, इसीलिए मैं केस 2 भी नहीं ले सकती, मैं केस 1 भी नहीं ले सकती। अब समझ आया क्वेश्चन, क्लियर है जोया, एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? डिसऑर्डर्स पे वापस आ जाए, राइट। ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार देखना है, राइट, सिंगल जीन का भी डबल जीन का भी, राइट, क्योंकि इसके बाद आगे एक्स लिंक्ड कराने के बाद मैं एक डिसऑर्डर एक्स लिंक का दूंगी, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट दूंगी, एक ऑटोसोमल रेसिव दूंगी, राइट। वहां आपको मैं पूरा ऑफस्प्रिंग नहीं पूछूंगी, लेकिन उसके गैमीट बनाने का तरीका हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, वो नहीं आता क्वेश्चन में, लेकिन गैमीट बनाने पे क्वेश्चन जरूरत है, शायद मैंने पहले भी कराया होगा ऐसा क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन हम एक टाइप का करेंगे, राइट, वंस वी कंप्लीट विद एक्स। फाइन एवरीवन, राइट, ओके गाइस, सो लेट मी स्टार्ट विद द डिसऑर्डर्स फॉर द, नाउ इन द डिसऑर्डर्स हमने ये वाला जो स्पेसिफिकली पढ़ा, चलो ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट।
नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन, राइट। अब ये 3 डिसऑर्डर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो फटाफट से काम करो, एक टेबल बनाओ, थोड़ा ब्लर आया है ये, और इसके साथ साथ फटाफट मेंशन करते जाओ कौन से क्रोमोसोम पे कौन से एंजाइम की वजह से और क्या क्या सिम्टम्स है, ताकि ये 3 डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव के क्लियर हो जाए। फिर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव के सबसे 2 मेन पे चलूँ, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, राइट, जो सबसे मेन है, राइट। और वो अगर एक बार खत्म हो गया तो चैप्टर का हार्डली 5% का काम बचा है हमारा नेक्स्ट करने के, राइट। ओके गाइस, नाउ द वेरी फर्स्ट पहला डिसऑर्डर एल्कैप्टोन्यूरिया, आल्सो कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिसीज। एल्कैप्टोन्यूरिया, ALKAPTONURIA, एल्कैप्टोन्यूरिया, also called black urine disease. Defective enzyme, homogentisic acid oxidase enzyme, or simply write it as HA, कैपिटल में HA लिख लो, HA oxidase enzyme deficiency। इसमें हम कहते हैं रिसेसिव जीन होने की वजह से ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगा, तो homogentisic acid oxidase enzyme deficiency, homogentisic acid oxidase enzyme deficiency, ठीक है, राइट। क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 3, थर्ड क्रोमोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 3, सिम्टम्स, यहाँ तक हो गया नोट सबका साथ साथ। सिम्टम्स में हम क्या कहते हैं बेटा, अब याद है इसका HA का, होमोजेंटिसिक एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा आगे, तो आगे कोई भी फ्यूमरिक एसिड और एसिडोएसिडिक एसिड नहीं बनेगा, तो मींस वो रिलीज आउट नहीं होगा बॉडी से। तो अब होमोजेंटिसिक एसिड का अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो एज इट इज यूरिन में रिलीज हो जाता है, तो हम कहते हैं एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ एल-कैप्टोन, राइट। होमोजेंटिसिक एसिड को क्या नाम देते हैं, एल-कैप्टोन, ALKAPTON, एल-कैप्टोन। एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ एल-कैप्टोन और होमोजेंटिसिक एसिड इन यूरिन में एक्सेसिव सेक्रीशन किया उसका, एंड अगर उस यूरिन को, इट्स अ फैक्ट बच्चा, अगर उस यूरिन को एज इट इज रख दो, जिस पेशेंट को एल्कैप्टोन्यूरिया, उसका यूरिन एज इट इज थोड़ी देर पे रख दिया जाए, टर्न ब्लैक इन कलर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द एयर ऑक्सीजन इट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस दैट फ्यूमरिक एसिड एंड एसिडोएसिडिक एसिड। Based on that, the black color appearance is visible. That's why the disorder is called as a black urine disorder. Got the point, everyone? Right. That's why the disorder is called as a black urine disorder, because of the excessive secretion of L-captone or homogentisic acid in urine, which if left then oxidize and produce a black color. Is it fine, everyone? Right. Now, the second one, mild erythritis. Actually, what happened? This homogentisic acid, once time secreted, and some of the content of homogentisic acid get accumulated into, right, wait Sanya, it get accumulated in the joints, एक crystal की form में acid crystal हमारे joints में जाके accumulate हो जाता है, and based on that it will leads to the problem of the bone impairment and the walking ability, leading to erythritis, right? Erythritis cause करता है, right, resulting in the mild erythritis, right? I say basically if the urine is left as such, so it will oxidize with the help of the oxygen, right, and atmospheric components की वजह से oxidize हो जाता है, and on oxidation it produces the black color of the urine, right? अब इसके अंदर जब पर्सन में ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है ना, तो हम कहते हैं हाउ क्लिनिकली यू कैन विजुअलाइज इट, क्लिनिकली कैसे देख सकते हो, राइट? द कार्टिलेजिनियस पोर्शन ऑफ द बॉडी स्टार्ट टर्निंग ब्लैक इन द कलर, राइट। बेसिकली इसमें हम एक मेन चीज याद रखना, जो कार्टिलेजिनियस पोर्शन है बॉडी का, लाइक द ईयर, राइट, जो ईयर का बेसिकली आउटर पार्ट है, ये कार्टिलेजिनियस पोर्शन है, ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट बिकमिंग ब्लैक इन कलर, वेरी डार्क ब्लैक इन कलर, और विद द ब्लैक पैचेस ऑल अराउंड। तो ये शो करता है कि होमोजेंटिसिक एसिड कार्टिलेज में भी डिपॉजिट होता है और जॉइंट्स में भी डिपॉजिट होता है, याद रहेगा पॉइंट, राइट? यस, ओके, yes Riya, your voice is not clear to me बच्चा, तो एक बार चैट पे लिख दो बच्चे इसमें, राइट? यस, हमने कहा यहाँ पर बेटा, इसके हिसाब से हमने क्या डिफाइन कर लिया, राइट, कि इट इज गोइंग टू बी द वन जहाँ HA, दैट इज होमोजेंटिसिक एसिड की जो प्रोडक्शन हो रही है वो कार्टिलेज में भी एक्यूमुलेट हो जाएगी और जॉइंट्स में भी एक्यूमुलेट हो जाएगी इसी वजह से, राइट? ओके, मैं पढ़ती हूँ एक बार दोबारा से। सिम्टम में पहला सिम्टम, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ एल-कैप्टोन होमोजेंटिसिक एसिड in urine, which if left then oxidize and produces black color. Second is mild erythritis due to the deposition of acid crystals in the joint. Due to the deposition of acid crystal as homogentisic acid crystals. Acid crystals in the joint. Mild erythritis is going to be there. Fine, right? This is the first point that we define as the L-captonuria, जो हमने L-captonuria define किया। Everyone understood यहाँ तक? Completed?
कोई पॉइंट इसके अंदर? अल्काप्टोन्यूरिया क्लियर हो गया अच्छे से सबको? राइट, नाउ द सेकंड वन इज अल्बिनिज्म। राइट, अल्बिनिज्म हमारे पास किसकी डेफिशिएंसी से हुआ है बच्चे? टायरोसिनेज एंजाइम। राइट, तो सेकंड वन इज अल्बिनिज्म, उसी के नीचे बिकॉज ऑफ द टायरोसिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी। टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से अल्बिनिज्म। राइट, क्रोमोसोम नंबर 11 पे इसका जीन प्रेजेंट है। राइट, प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। राइट, और सिम्टम्स में रिड्यूस्ड मेलानिन सिंथेसिस, बॉडी के अंदर मेलानिन सिंथेसिस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, तो वेरी लाइट इन कलर वाला ट्रेट आ जाएगा हमारे पास। राइट, तो हमने कहा रिड्यूस्ड मेलानिन सिंथेसिस व्हिच लीड्स टू द डिक्लाइन पिगमेंटेशन, की बॉडी में पिगमेंटेशन का डिक्लाइन हो गया हेयर में और आइरिस में। तो हेयर में बेसिकली मेन मिलेगा, स्किन पे मिलेगा, आइरिस पे मिलेगा। राइट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन। दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इन द केस। यहाँ पर हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? राइट, कंप्लीट एल्बिनिज्म क्लियर है सबको अच्छे से? राइट, कि एल्बिनिज्म किस तरीके से पढ़ते हैं इसमें। देन हमने कहा बच्चे फिनाइल कीटोन्यूरिया। राइट, फिनाइल कीटोन्यूरिया के नीचे लिखना इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। राइट, बीनीथ फिनाइल कीटोन्यूरिया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसे इनबॉर्न क्यों कहते हैं? बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ बर्थ से कंडीशन से पॉसिबिलिटी हो जाती है। राइट, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। राइट, एंजाइम में फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंसी। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंसी। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंसी। राइट, क्रोमोसोम नंबर सेकंड, क्रोमोसोम नंबर सेकंड। राइट, किस पे हमारे को मिलेगा यहाँ पर स्पेसिफिकली? सेकंड कह रही, सॉरी 12, क्रोमोसोम नंबर 12, नॉट सेकंड बचा, क्रोमोसोम नंबर 12। राइट, क्रोमोसोम नंबर 12। राइट, उसी के बाद न्यूरल डिसफंक्शनिंग। राइट, इट लीड्स टू न्यूरल डिसफंक्शनिंग। न्यूरल डिसफंक्शनिंग, यस, इनबॉर्न, अभी समझाती हूँ काजल। न्यूरल डिसफंक्शनिंग, reduced learning and thinking ability. Neural dysfunctioning, reduced learning and thinking ability. Neural dysfunctioning, reduced learning and thinking ability. Right, chromosome number 12, chromosome number 12. Right, on chromosome number 12 it is being visible. Right, and symptoms में neural dysfunctioning, reduced learning and thinking ability, और उसी के बाद अनेबिलिटी टू वॉक एंड टॉक। अनेबिलिटी टू वॉक एंड टॉक, वॉक एंड टॉक की एबिलिटी नहीं रहती, टू वॉक एंड टॉक। ठीक है, अब बेसिकली राइट, और उसी के नीचे लिखना एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी याद है सबको? प्लियोट्रॉपी में पढ़ा था ना हमने ये वाला। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग द मल्टीपल सेकेंडरी इफेक्ट्स आल्सो। ये तो प्राइमरी इफेक्ट हुआ इसके। राइट, देखो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से फिनाइल पायरुवेट का एक्यूमुलेशन, वो एक्यूमुलेट कहाँ पर जाके करता है? ब्रेन सेल्स में। ब्रेन सेल्स में एक्यूमुलेट करके इम्पल्स के ट्रांसमिशन को बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर देता है। The person is having, the child is having, rather not a person, is having the basically आपका reduced learning and thinking ability, right? Along with that, bone deformity is also being there, because of it the person is not able to walk and the child is also not able to talk. राइट, बहुत एक्सट्रीम केसेस में ये दोनों भी मिलते हैं। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि चाइल्ड वॉक तो कर पा रहा है लेकिन बात नहीं कर पा रहा है, या बात कर पा रहा है तो चल नहीं पा रहा है। राइट, इट इज कॉल्ड इनबॉर्न एरर। इनबॉर्न एरर का मतलब, क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया का टेस्ट अब के टाइम में तो सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे ही हो जाता है। राइट, इट कैन बी डिटेक्टेड एट द सेकंड और थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी ओनली। लेकिन ये बस टेस्ट बहुत बहुत रेयर होता है, क्योंकि इस टेस्ट में हमें स्पेसिफिकली पूरा जीन स्टडी करना पड़ता है। राइट, कैरियोटाइपिंग के थ्रू आप इसे नहीं पढ़ सकते। डाउन सिंड्रोम आप कैरियोटाइपिंग के थ्रू पढ़ सकते हो। इज इट फाइन एवरीवन? डाउन सिंड्रोम कैरियोटाइपिंग के थ्रू पढ़ सकते हैं, इसको कैरियोटाइपिंग के थ्रू नहीं पढ़ सकते। एक्सप्लेन करो ये लाइन मुझे फटाफट से। राइट, हम इसको इस पर्टिकुलर फिनाइल एलानीन, फिनाइल कीटोन्यूरिया को व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्टडी वाया कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग से मैं इसे क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? राइट, क्योंकि कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो जो भी डिसऑर्डर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, उसके नंबर में ऑल्ट्रेशन की वजह से उसको डिटेक्ट कर देगा, लेकिन जीन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। समझ आया? राइट, तो जीन को एग्जैक्टली, और जीन को डिटेक्ट करने के लिए, वेरी गुड आना, जीन को डिटेक्ट करने के लिए मुझे उसका डीएनए आइसोलेट करके जीन को स्टडी करना पड़ेगा।
राइट, तो इसीलिए बहुत रेयर होता है टेस्ट, राइट। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया एक्चुअली में अब तो जनरली एडवाइस किया जाता है कि करा लेना चाहिए, राइट, बट एट द टाइम, राइट, ये पहले क्या होता था कि जब बेबी बॉर्न हो रहा है उसी टाइम पे पता चल गया कि बेबी सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोन्यूरिया, क्योंकि लेग्स जो होते हैं ना बिल्कुल थिन होती है, राइट, हाईली थिन इन नेचर, राइट, आर्म्स और लेग्स, राइट, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, और ब्रेन की शेप भी थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो पता चल जाता है कि हाँ पर द पर्सन इज सफरिंग, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोन्यूरिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी गेट टू नो। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? यस, इट कैन बी ट्रीटेड, ये ध्यान रखना, इट कैन बी ट्रीटेड, राइट, लेकिन एक एज तक, उसके बाद भी ज्यादातर ट्रीटेड नहीं होता है, क्योंकि आप न्यूरल डिसफंक्शनिंग को ट्रीट नहीं कर सकते, right? So these are the major three disorders, right, that we define. Now moving to the sickle cell anemia. Sickle cell anemia मैं अधिकतर आपको पढ़ा चुकी हूँ, राइट, अब मेन चीजें मुझे इसमें आपको बतानी है, वो आपको ध्यान से सुनिए। सिकल सेल एनीमिया याद है सबको, हमने कितनी बार पढ़ा है, राइट? अच्छा, टेल मी गाइस, इज सिकल सेल एनीमिया एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी? Is sickle cell anemia an example of pleiotropy? Yes. Apart from this, it also show 2 or 3 features we have discussed. Apart from this, it also show 2 or 3 features which we have discussed previously. बताओ कौन कौन से मैं एग्जाम्पल में पढ़ा था? थोड़ा सा सोचो। Remember codominance? Very good, Sanya. Codominance. एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कोडोमिनेंस में सिकल सेल एनीमिया। फिर आपको मैंने पढ़ाया था मिससेंस म्यूटेशन, इट्स एन एग्जांपल ऑफ मिससेंस म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। वेरी गुड। तो ऑटो बेसिकली हमारे पास सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। बहुत ध्यान से, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। एज इट इज ट्रांसमिटेड टू पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ट्रांसमिट होता है जब मदर एंड फादर, ये बहुत ध्यान से चीज, मदर एंड फादर बोथ कैन बी कैरियर for the gene, right? The disease is controlled by single pair of allele HBS, right? तो हमारे पास नॉर्मल अलील कौन सा है? HBA। डिसीज्ड अलील कौन सा है हमारे पास? HBS। बहुत अच्छी लैंग्वेज एनसीईआरटी में दे रखी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, राइट? तो हमारे पास सिंगल पेयर ऑफ अलील है जिसको हमने HBA HBS कहा, जिसके बेस पे 3 जीनोटाइप पॉसिबल है। वेरी इंपॉर्टेंटली सी ओवर हियर, नॉर्मल इंडिविजुअल इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंट। Normal individual is called homozygous dominant as HBA HBA, where HBA HBS is also normal but a carrier। ये भी normal है लेकिन उसके साथ साथ क्या है? कैरियर है। क्यों कैरियर है? क्योंकि ये एक्चुअली में सिकल सेल के ट्रेट, अभी मैं ट्रेट और वो वर्ड बताऊंगी तो समझाऊंगी, चलो इस पॉइंट को, राइट? ये बेसिकली अभी याद रखना, हेट्रोजाइगस की वजह से मैं इसे कैरियर कह रही हूँ क्योंकि आगे की जनरेशन में पास ऑन कर सकता है, राइट? HBS एक ऐसा है जो मेरे पास डिसीज्ड है, राइट? जो अटेनिंग मेच्योरिटी, क्यों होता है ऐसा? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी दिस लाइन दैट HBS इज डिसीज्ड एंड डाई बिफोर अटेनिंग मेच्योरिटी? ये पॉइंट भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डाई बिफोर अटेनिंग। वेरी गुड जैस्मीन। सबलिथैलिटी हमने पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ सबलिथैलिटी because it is being the one where individual will not able to survive in the homozygous recessive state, right? और lethality तो basically homozygous condition में appear होती है, right? And where it will die before attaining reproductive maturity, राइट? अब अगर मैंने कहा बच्चे, राइट, इसके अंदर, राइट, HBA HBS में क्या मेन अब काम हो रहा है, मैं ये वाली चीज अब बाद में पढ़ाऊंगी, उससे पहले इसका पूरा प्रोसेस कैसे चलता है वो समझते हैं। तो बहुत ध्यान से पूरा इसका बायोकेमिकल प्रोसेस पहले क्लियर करना है, फिर मैं इसके इनहेरिटेंस पैटर्न पे आती हूँ, राइट? अब देखो मेरे पास जो HBA जीन है विच इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11th क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट है HBA एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है? HBA अलील है उसके पास, एक होमोलोगस के पास HBA, एक होमोलोगस के पास HB, ठीक है? तो अब मैंने HBA जीन को उठाया, इस HBA जीन के अंदर कम से कम 200 कोडॉन्स हैं, राइट? जिसमें से मैंने स्पेसिफिकली एक ट्रिपलेट उठाया और वो ट्रिपलेट डीएनए के 6th पोजीशन पे, राइट? व्हाट्स दैट ट्रिपलेट? ट्रिपलेट इज प्रेजेंट ऑन द 6th पोजीशन ऑफ द डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दैट ट्रिपलेट ऑन द, बेसिकली जो ट्रिपलेट मेरे पास प्रेजेंट है इसके 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये स्ट्रैंड जो है ना ऊपर GAG वाला, दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, CTC वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट? तो CTC वाला स्ट्रैंड कौन सा हो गया? 3 to 5। GAG वाला कौन सा हो गया बच्चे? ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था म्यूटेशन में कि मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अगर मैं उसका ट्रांसक्रिप्शन कराती हूँ तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में किसमें चेंज होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी।
तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मेरे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम में चेंज हो गया, तो CTC मेरे पास किस में चला गया, GAG। mRNA बन गया पूरा, इसके पीछे भी कोडॉन्स है, इसके आगे भी कोडॉन्स है, लेकिन हमने वो लगाया नहीं, हमने सिर्फ मेंशन किया 6th ट्रिपलेट ऑफ DNA, 6th कोडॉन ऑफ mRNA। डन। अब इस 6 कोडॉन की वजह से ये बेसिकली HBA जीन है, इट विल गिव बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन और बीटा पेप्टाइड चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन को बनाना। अब ये जो बीटा ग्लोबिन चेन बनेगी उसमें GAG which is a 6 codon will code for glutamic acid as the 6th position। 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बनेगा, नॉर्मल फंक्शनल बीटा ग्लोबिन चेन बनेगी विच इज कॉल्ड एज HBA पेप्टाइड, जिसे आपने सिंपल नाम दे दिया, HBA पेप्टाइड का नाम दे दिया कि HBA मेरे पास सीक्वेंस पूरा सिंथेसाइज हो चुका है। Now let us suppose बेटा बहुत ध्यान से, now let us suppose there is a point mutation occur at the 6th codon, 6th triplet of DNA। ट्रिपलेट DNA में हम कोडॉन वर्ड यूज नहीं करते, ट्रिपलेट करते हैं। DNA के 6th ट्रिपलेट पे on its 5 prime 3 prime to 5 prime strand at the middle position thymine is replaced by adenine, right? A point mutation, a substitution mutation occur where thymine is replaced by adenine on 3 prime to 5 prime position, which leads to change in complementary base on 5 prime to 3 prime strand। 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमने कहा अगर थाइमीन एडेनाइन में चेंज हुआ तो ऊपर जो एडेनाइन था वो थाइमीन में चेंज हो गया। Because of this change as CAC, if the transcription will occur, apart from the C you will get G, but A से आपको जो पहले T से A मिल रहा था वो अब A से U मिलेगा। Means there is a change in the mRNA codon, mRNA codon change हो चुका है। एंड इफ यू रिमेंबर आई टेल यू गाइस, कोडॉन के अगर थर्ड बेस पे चेंज करते हो तो शायद अमीनो एसिड पे फर्क ना आए, लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड बेस पे चेंज करते हो तो अमीनो एसिड में फर्क आएगा ही आएगा। आपने किस पे चेंज किया, सेकंड पोजीशन पे ना। अगर आपने सेकंड पोजीशन पे चेंज किया तो जो 6th पोजीशन पे पहले पेप्टाइड में अमीनो एसिड आ रहा था विच वाज ग्लूटामिक एसिड, now that appear as valine, वो appear होता है वेलिन की तरह। Because of this valine, this is called as a mutated polypeptide chain, which is not beta globin chain now, but a non-functional beta globin chain called HBS peptide। इसको नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पर, HBS peptide का नाम दे दिया। समझ आया पॉइंट, right? Based on this, now tell me guys, is it a substitution mutation or a frame shift mutation? Quickly, is it a substitution mutation or a frame shift mutation? कौन सा म्यूटेशन है हमारे पास, right? Substitution, very good, substitution in the beta globin chain। now is it just in the substitution mutation, it is transition or transversion? It's transition or transversion। quickly, transition और transversion, दो वर्ड याद है? ट्रांजिशन क्या होता है फटाफट मुझे समझा दो जरा पहले, और ट्रांसवर्जन क्या होता है? स्वतंत्र, थिंक अबाउट इट अगेन बच्चे, राइट? ट्रांजिशन इज जब प्यूरिन प्यूरिन में, पिरिमिडीन पिरिमिडीन में चेंज होता है, लेकिन ट्रांसवर्जन इज जब प्यूरिन पिरिमिडीन में और पिरिमिडीन प्यूरिन में चेंज होता है, जब आप रिवर्स को चेंज करते हो। तो यहाँ किसको चेंज कर रहे हो? थाइमीन एडेनाइन में गया ना, तो थाइमीन इज अ पिरिमिडीन, एडेनाइन इज अ प्यूरिन। तो पिरिमिडीन को किसमें चेंज कर दिया? प्यूरिन। प्यूरिन को किसमें चेंज कर दिया? पिरिमिडीन। मींस इट इज बीइंग द वन व्हिच एक्चुअली शो ट्रांसवर्जन। एवरीवन अंडरस्टूड ना? Right, okay, is it a missense mutation outcome or it's a nonsense mutation outcome or a same sense mutation outcome? Right, कौन सा outcome है? missense, same sense or nonsense mutation? Very good guys, missense, because there is a synthesis of non-functional polypeptide। बहुत ही बढ़िया, right? तो यहाँ तक का प्रोसेस सबको क्लियर हुआ अच्छे से, कैसे चेंज हुआ? अब मैं 3 कंडीशन समझाऊंगी इसी डायग्राम से, और तीनों कंडीशन बहुत ध्यान से सुनो। जो इंडिविजुअल HBA है उस इंडिविजुअल में HBA पेप्टाइड बन रही है, दैट इज नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन बन रही है। देयर इज नो चांस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया एवर अपीयर इन द बॉडी। अंडरस्टूड?
द इंडिविजुअल विच इज HbS क्योंकि उसके दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे HbS है, मीन्स दोनों होमोलोगस क्रोम पे जीन म्यूटेटेड है। तो अगर मेरे पास जितनी पॉलीपेप्टाइड बनती हैं, वो जितनी भी पॉलीपेप्टाइड बनेंगी, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी द नॉन फंक्शनल बीटा ग्लोबिन चेन, दैट इज HbS पेप्टाइड। वो HbA पेप्टाइड नहीं बन रही, वो अब HbS पेप्टाइड बन रही। इज इट फाइन? अब मेरे पास एक हो गया HbA पेप्टाइड, एक हो गया HbS पेप्टाइड। अंडरस्टूड? अब मैंने कहा इस इंडिविजुअल पे आते हैं जो सबसे मेन है, जिसके पास HbA HbS है, राइट? जिस इंडिविजुअल पे HbA एक क्रोमोसोम का होमोलोगस पे है, HbS दूसरे होमोलोगस पे है ऑफ अ पेयर, तो HbA वाला तो नॉर्मल पेप्टाइड बनाएगा, लेकिन HbS वाला तो HbS पेप्टाइड बनाएगा क्योंकि उस पे तो म्यूटेशन है। तो क्या बताओ मुझे बच्चे, 100% बीटा ग्लोबिन चेन नॉन फंक्शनल होंगी, 0% नॉन फंक्शनल होंगी, या 50% नॉन फंक्शनल होंगी? टेल मी गाइस, is it 50% peptide chain non-functional, 0% non-functional, or 100% non-functional? Absolutely Rana, very good Abhishek, 50%। बिल्कुल ठीक बेटा। वंस अगेन ध्यान से सुनना, फिर से तभी मैंने कहा जिस इंडिविजुअल के पास HbS है, नो डाउट वो दोनों पेप्टाइड कैसी बनाएगा, हमारे पास नॉन फंक्शनल ही बनाएगा, ठीक है, 100% नॉन फंक्शनल बनाएगा। जिस इंडिविजुअल के पास आपका HbA HbS है, तो HbA के पास तो म्यूटेशन नहीं है ना, HbA तो नॉर्मली पेप्टाइड दे सकता है ना, तो HbA पेप्टाइड आ गई, लेकिन HbS वाला क्या दे रहा है मुझको, HbS पेप्टाइड दे रहा है, तो उसकी वजह से इसने शो कर दिया 50% केस। अगर 50% पेप्टाइड बेटा नॉन फंक्शनल है और 50% फंक्शनल है, तो ये एग्जाम्पल में किसमें डालूं, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस? कोडोमिनेंस। अब समझ आया कोडोमिनेंस का मीनिंग, why I name it as codominance? Once again remember this one, right? और इसको लिख ही लो, right? इसके नीचे an example of codominance, because HbA individual form all normal functional बीटा ग्लोबिन थिंग्स, ठीक है। वहीं पर HbS इंडिविजुअल फॉर्म ऑल नॉन फंक्शनल beta globin chains. And if I say HbA HbS, right? अगर HbA HbS को देखें, इंडिविजुअल फॉर्म 50% फंक्शनल and rest non-functional. Can I say it show the juxtaposition effect? But RBCs are normal in shape until there is deficiency of oxygen. There everyone. So HbA individual all the normal functional, HbS all the non functional, HbA HbS 50% functional and rest non functional, right? जिसकी वजह से juxtaposition effect हो गया, right? Hence show codominance, right? Yes, what बेटा? juxtadominance क्लियर हुआ? juxtadominance पढ़ा, juxtaposition पढ़ा था ना हमने। juxtaposition का मतलब क्या पढ़ा था? रॉन कलर पढ़ा था, याद है? रॉन कलर, राइट?
ब्राउन कलर, और या फिर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एबी ब्लड ग्रुपिंग, एबी में क्या हो रहा है, आई ए भी शो कर रहा है, आईबी भी शो कर रहा है, तो एचए भी शो कर रहा है, एचएस भी शो कर रहा है, सिंपल, क्लियर, राइट। ऑन द 6th पोजीशन हमेशा ये चीज याद रखनी है, दिस इज गोइंग टू हैपन। तो ये एक मैंने और डिटेल में थोड़ा सा दे दिया है यहाँ पर, ताकि इस फिगर से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। एचबीएस इंडिविजुअल, हाँ अब मैं बताती हूँ वाला केस भी आ रही हूँ मैडम, उस पर भी आ रही हूँ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ मैंने अब ये केस, तो ये तो सबको समझ आ गया अमीनो एसिड का सीक्वेंस हम कैसे चेंज करें एंड हाउ द चेंज इज गोइंग टू अकर, राइट। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर ध्यान से इसके अंदर, इफ आई विल से बेटा आरबीसी की शेप कैसे चेंज होती है, तो एचबीए इंडिविजुअल ने तो जब फंक्शनल बीटा ग्लोबिन चेन बनाई तो फंक्शनल आरबीसी की फॉर्म रहेगी, उसकी भी शेप प्रॉपर रहेगी, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल शेप नॉर्मली अटेन करके रखेगा। जो इंडिविजुअल एचबीएस है, राइट, उसमें उसके अंदर एचबीएस होने की वजह से, राइट, वेलिन जब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वेलिन ही आ गया ना बीटा ग्लोबिन चेन, अब बीटा ग्लोबिन चेन नॉन फंक्शनल हो चुकी है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुका है, आरबीसीज के साथ प्रॉपर्ली वाइंड अप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पूरा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी और पूरा आरबीसी का स्ट्रक्चर स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेन इफेक्ट करता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। हर टाइम सिकल सेल पेशेंट के अंदर भी आरबीसी सिकल शेप नहीं होता, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे, वो मैं समझाती हूँ कैसे। जब ऑक्सीजन की कंटेंट बॉडी में कम होता है उस टाइम पे वेलिन इन द बीटा ग्लोबिन चेन फॉर्म द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस विद द आरबीसी ग्लाइकोफोरेंस। आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो एक चैनल्स होते हैं ग्लाइकोफोरेन, सुना है नाम सबने, राइट, ग्लाइकोफोरेन चैनल्स आर देयर। These glycophorin channels and valine of the beta globin chain, which is a non-functional globin chain, will connect together via hydrophobic interactions. जब ग्लाइकोफोरिन अंदर की तरफ जाके ऐसे स्क्वीज होते फोल्ड होते चले जाएंगे तो शेप नॉर्मल रहेगी, अंदर से ऐसी हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी शेप, तो शेप विल बिकम एज दी सिकल शेप, राइट। कभी भी एक इंडिविजुअल जो एचबीए वाला है वो सिकल शेप्ड आरबीसी नहीं बनाता, एचबीएस वाला भी सिकल शेप्ड आरबीसी नहीं बनाता until unless ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो, राइट। लेकिन जो बनेंगे वो कितने 50% आरबीसी चेंज हो, फुल नहीं, बट इन एचबीएस 100% आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड, right, when there is a oxygen lower concentration observed, right। और जब आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाते हैं so they will trap in the blood vessel instead of pouring it into the another organ, they will just get trapped over there, because of which oxygen reduction is going to be there in the whole body, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है and result in the death of the, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? ये सानिया क्या बेटा, राइट, everyone understood यहाँ तक, completed with the point, कोई डाउट इसमें, राइट। एचबीएस का पॉइंट याद रहेगा, राइट। अब हमें क्या याद रखना है, सिकल शेप्ड मेरे पास कब हुए बेटा, सिकल शेप्ड ओनली इन द कंडीशन, राइट, व्हेन देयर इज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेस, इसीलिए कहते हैं एचबीएस पर्सन, राइट, दे आर 1 to हायर अल्टीट्यूड पे जब जाते हैं, जब ऑक्सीजन ऑलरेडी कम हो जाती है तो वहां पर जाके सडनली दे कैन डाई, फाइन। अब एक आपके पास चार्ट सामने है, यहाँ दो चीजें वर्ड मैं बस समझाऊंगी, दो वर्ड लिखे हैं, सिकल सेल ट्रेट एंड सिकल सेल डिसीज। टेल मी गाइस, सिकल सेल ट्रेट हेट्रोजाइगस है या सिकल सेल डिसीज हेट्रोजाइगस? यस। व्हाट इज शोइंग द हेट्रोजाइगस इनहेरिटेंस, फिगर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, इज इट द सिकल सेल डिसीज और द सिकल सेल ट्रेट? वेरी गुड, सिकल सेल ट्रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक बेटा। सिकल सेल ट्रेट इज बीइंग द वन व्हिच इज हेट्रोजाइगस, सिकल सेल डिसीज इज द वन व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस, इसमें एचबीएस प्रेजेंट है, वो सिकल सेल ट्रेट है। अच्छा अब बता दो फटाफट से, फर्स्ट केस 100% प्रोजेनी अफेक्टेड, बट इज इट नेचुरली एक्सेप्टेबल प्रोसेस? फर्स्ट केस इज नेचुरली एक्सेप्टेड, नो, because the person do not survive, ठीक है, राइट। बस ये केस इसीलिए आपको ये चार्ट दिखाया मैंने ताकि ऑटोसोमल रिसेसिव का इनहेरिटेंस समझ आ जाए। नाउ इन इसी के बाद सेकंड वन, राइट, ये सिकल सेल डिसीज है, नॉर्मल है, राइट, इसकी वजह से अगर इसके पास स्मॉल ए आ गया, इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया, तो आगे तो आने वाली प्रोजेनी पे हो जाएगा ना कैपिटल ए स्मॉल ए। तो टेल मी गाइस, सेकंड केस वंस अगेन पॉसिबल और नॉट?
सेकंड केस भी नेचुरली पॉसिबल नहीं है, बट लेट अस सपोज अगर मैंने इसे मान लो पॉसिबल करा दिया, मान लो, ठीक है, तो सेकंड केस के अंदर पेरेंट का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, फटाफट से, व्हाट्स द जीनोटाइप इन द सेकंड केस फॉर द पेरेंट, पेरेंट का जीनोटाइप क्या होना चाहिए सेकंड केस के अंदर? मदर का तो फिक्स है, स्मॉल ए होगा, फादर का क्या होना चाहिए? कैपिटल ए, वेरी गुड, यस अंकुर, राइट, कैपिटल ए, बिल्कुल सही, कैपिटल ए, तभी तो आगे हर प्रोजेक्ट में कैपिटल ए स्मॉल आएगा, सिकल सेल ट्रेट आएगा, ठीक है। थर्ड वाला देखो, दोनों सिकल सेल ट्रेट कैरी कर रहे हैं, या जाएगी कंडीशन, राइट, थर्ड वाला तो पूरी तरीके से पॉसिबल है, फोर्थ वाला भी पॉसिबल है, एंड द फिफ्थ वन इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब यहाँ भी देखो वापस से फादर इज ट्रांसफरिंग द ट्रेट टू द सन, राइट, तो इस हिसाब से हमें ये पता चल गया कि HbA-HbS वाला इंडिविजुअल सिकल सेल ट्रेट है, HbA-HbA वाला पेशेंट हमारे पास, राइट, इज बीइंग डिफाइनिंग, राइट, कि इट इज गोइंग टू हैव द सिकल डिसीज, HbS-HbS, वहां पर HbA-HbA वाला नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कैरी कर रहा है, राइट, क्लियर यहाँ तक का पॉइंट, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट, कंप्लीटेड, राइट, कंसेप्ट समझ आ गया अच्छे से कैसे हमने इसको पढ़ा है, राइट, ओके गाइस, सो अब फटाफट से मुझे रेशो निकाल दो कोडोमिनेंस की, कोडोमिनेंस F2 रेशो, जल्दी से, कोडोमिनेंस F2 रेशो, कोडोमिनेंस F2 रेशो, वेरी गुड, 1:2:1, कोडोमिनेंस की F2 की रेशो क्या आती है, सिंपल 1 to 1 आती है ना, तो मेरे पास रेशो इज द सेम 1:2:1, आफ्टर लिथैलिटी व्हाट द रेशो इज, आफ्टर लिथैलिटी व्हाट द रेशो इज, ये मैंने पहले भी कराया था आपको, 2:1, very good, after lethality the ratio is 2:1, okay, which case is always possible in the case of the sickle cell anemia, which case is always possible in the case of the sickle cell anemia? कौन सा केस पॉसिबल है, पेरेंट को क्या लेके चलना चाहिए जो हमेशा के लिए पॉसिबल आएगा, एग्जैक्टली, राइट, सो वी सेज जो हमारे पास है, कैन आई से हेट्रोजाइगस सेल्फिंग ऑलवेज मेक दैट द केस, बिल्कुल ना, वेरी गुड, हेट्रोजाइगस सेल्फिंग कि हमारे पास HbS की अगर मैं सेल्फिंग करा दूं तो पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी है, क्रॉस हमेशा होगा, उसके अलावा आप एक जो है HbA-Hb ले लो, दूसरा HbS-HbS ले लो, राइट, उसमें भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि HbS-HbS जेड हो जाएगा, तो अगेन यू हैव टू टेक एज HbA-HbS, फाइन, राइट, एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक, सिकल सेल एनीमिया सबको क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट इसमें, कंप्लीटेड, राइट, सो पूरा इनहेरिटेंस, ट्रांसवर्जन, मिससेंस म्यूटेशन, राइट, एंड द होल सिकल सेल एनीमिया, दिस इज वेयर वी एंड अप द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में सारे डिसऑर्डर और माइटोकॉन्ड्रिया